Good evening, all of you, and thanks a lot for joining us today. This webinar has been organized by Money Life Foundation. We are a 10-year-old nonprofit, and our primary goal is to spread financial literacy and help address a wide spectrum of issues that affect us as a customer. And also, we work a lot on the Right to Information Act. Before we begin, allow me to take this opportunity to thank our esteemed speaker, Subhash Chandra Agrawal sir, and also former Central Information Commissioner, Shailesh Gandhi sir, for joining us today. Those of you who have been following Money Life know about the work that we've been doing in trying to spread transparency. And you must also be aware how difficult it is to get information from the regulators specifically. It takes multiple RTIs and a lot of follow up to get information from them. And despite doing that, information is rarely ever shared. And today we have with us a very famous RTI activist who has done just that. So before I invite, let me share a couple of very strict rules that I'm going to request all of you to follow. One is we've kept all of you on mute during the session for the benefit of all involved, and we will only unmute you during the Q&A. For optimal view, I'm going to request you to keep your webinar on the speaker view. Also, this video is being recorded and a copy of this will be uploaded on our YouTube channel, Money Life TV, if you wish to refer back to that at a later stage. During the Q&A, please use the raise hand button option that is available on Zoom if you wish to ask us any questions. Also, please feel free to use the chat section to share your comments, questions, and observation. But please do not send it to us in person. Please keep it only in the public forum. Also, please note your homes and your backgrounds are visible to all of us on the call. So, if you wish to protect your privacy, then I would request you to all to switch off your videos. Now, before I start, I would also like to introduce our moderator for the evening, Shailesh Gandhi sir. And before I hand it over to him, for the ones who are joining us for the first time, let me introduce sir. So Shailesh Gandhi sir is the first RTI activist who went on to become the Information Commissioner. And as an Information Commissioner, he has presided and passed judgments to over 20,000 cases. And to his record, he digitized his entire office. And this was way back in the year 2008. And since his retirement, he's passionately pursuing the cause of right to information by going to different organizations and speaking at seminars and webinars. And he's been trying to educate people. So I think, sir, I would now like to hand it over to you to introduce our speaker. Sir, over to you. Thank you, Arvind. It's a delight to introduce my friend Subhash Chandra Agrawal today to the audience. Subhash Chandra Agrawal is one of the pioneers and leading names in the right to information movement. And I recall the fact that he used to have so many RT applications, almost all of them concerning larger public good and larger public interest. It's very rare to find such a person. There are very few people who've done this, and he was a prolific RTI user. And what I used to be very surprised at, he meticulously maintained records of all his various RT applications. He would come up to the commission, he would have a first appeal somewhere, RTI application somewhere. And I do recall one instance when he was nearly attacked by some municipal corporation people in Delhi, but he managed to run away. Subhash Chandra Agrawal is a person, he's an icon for the RTI movement, and I have no hesitation in saying, I'm sure his interaction is going to be very useful. Subhash Chandra ji, namaskar. Over to you. Thank you, शैलेश सर. जैसा मिस्टर शैलेश गांधी ने एक कहा, अटैक वाली बात मैं यहीं से शुरू करता हूं. और ये भी एक आपका जो टॉपिक है आज का, कि आरटीआई being used for regulatory public authorities. दिल्ली में मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट वाइडली यूज क्रिमिनेशन ग्राउंड है निगमबोध घाट. वहां पर क्या था कि डीडीए ने उसका पूरा रिनोवेशन किया था और एक जैसा यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ पायर्स बनाया था. 3 पायर्स का एक ब्लॉक था. पर और एक वहां पे था जो कि 1967 में वीवीआईपी प्लेटफॉर्म बना था फॉर क्रिमेशन ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय. उसके अलावा सारे पायर्स एक जैसे थे. और उस पे क्रिमेशन के लिए पैसा चलता था इन नेम ऑफ फ्लावर डेकोरेशन. भाई फ्लावर डेकोरेशन करा देंगे, बोलो कितने लोग हैं.
और जैसा स्टेटस आदमी का देखा उस हिसाब से वो लोग उसके पैसे मांग लिया करते थे। अब वहां पर तो एक क्रिमेशन हो गया तो 2 दिन के लिए बुक हो गया, जब तक उसका अस्थियों का वहां पर से नहीं हटा ली जाती। तो जो एमसीडी के एम्प्लॉयज थे उन्होंने सोचा कि ये तो बड़ा अच्छा धंधा है। उन्होंने 3 पायर्स का एक ब्लॉक था, उसके चारों तरफ एक 3 फुट ऊंची एक आयरन ग्रिल लगा दी और उसको नाम दे दिया सेमी वीआईपी। अब मैंने एक आरटीआई लगाई। जब आरटीआई टाया आया था, मेरे को भी तजुर्बा नहीं था, और वजाहत हबीबुल्ला साहब जो थे वो दिल्ली गवर्नमेंट भी देखते थे। एक आरटीआई लगा के मैंने पूछ लिया भाई कि इसकी फाइल नोटिंग बताओ कि ये डिसीजन कैसे लिया गया कि जीते जी तो डिस्क्रिमिनेशन होता ही है, गरीब और अमीर में मरने के बाद भी हो रहा है कि सेमी वीआईपी क्रिमेशन और वीआईपी क्रिमेशन। तो हबीबुल्ला साहब ने इंस्पेक्शन का, साइट इंस्पेक्शन का ऑर्डर दे दिया। तो यह एमसीडी का हेल्थ ऑफिसर था, अपने साथ गुंडे लेकर आ गया और वहां पे उसने अपना इतना हल्ला मचाया कि जो हबीबुल्ला साहब ने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा था वो तो डर के मारे चुप हो गया। और वो बोले जी पहले ये बताओ कि यहाँ पे एक पुरानी जो पायर थी वो बताओ कहाँ है। अब बताइए, इतने बड़े, वो किस जगह थी, इतने बड़े ग्राउंड, सारा डेमोलिशन हो गया, मैं कैसे पिन पिन कर सकता हूँ कि वो किस पॉइंट पे है। तो सीआईसी के रिप्रेजेंटेटिव ने लिख दिया कि सुभाष चंद्र अग्रवाल नहीं बता पाए कि वो पुरानी पायर जो थी वो किस जगह थी। मामला बंद हो गया। पर धीरे धीरे जब मेरे को तजुर्बा हो गया और मेरा हौसला भी खुल गया, तो लकीली फिर मैंने आरटीआई बड़े ढंग से लगाई और उसमें मैंने पार्टी डीपीए को भी बनाया, एमसीडी को भी बनाया, और जो और एनजीओ से हैंडल करता था आर्य समाज लोधी रोड, उसे भी पार्टी बनाया और बड़े ढंग से क्वेरीज लगाई। क्योंकि एमसीडी जो था वो रेगुलेटरी पब्लिक अथॉरिटी था और आर्य समाज लोधी रोड जो था वो रेगुलेटेड बॉडी थी जो कि मैनेज कर। गांधी साहब के से तो आप लोग सब परिचित होते, वो तो अगर इस तरीके का कोई मैटर सामने आया, आरटीआई ढंग से लगी हो नहीं लगी हो, फिर वो तो गुस्से में छोड़ते नहीं है, पीछा नहीं छोड़ते हैं ऐसे करप्ट लोगों का। तो वहां पे जाके वो एकदम आर्य समाज लोधी रोड वाले घबरा गए, यूं बोले जी किसी में ने भी लगाई होगी वो ग्रिल, हम हटा लेते हैं। मैंने कहा उसकी फाइल नोटिंग लाओ कि ये डिसीजन कैसे लिया। मैं, राइट टू इंफॉर्मेशन इज नॉट राइट टू एक्शन। मैंने कहा मैं कह ही नहीं रहा कि आप ग्रिल हटा दो, मेरे को तो वो नोटिंग चाहिए जिसके मुताबिक कि ये डिसीजन लिया गया कि यहाँ पे ग्रिल लगा के इसे सेमी वीआईपी पायर बना। तो आर्य समाज लोधी रोड वाले बोले जी किसी ने भी लगाई हो, डीडीए ने लगाई या एमसीडी ने लगाई, हम हटा लेते हैं। मैंने गांधी सर से रिक्वेस्ट करी जी आप इसमें एडजॉर्न कर दो कि जब काम हो जाए तो दोबारा हियरिंग हो। दोबारा हियरिंग हुई तो आर्य समाज लोधी रोड वालों का फोन पे बजर आया और वो ग्रिल हट गए। उसके जितने भी प्राइवेट टीवी चैनल्स थे, दूरदर्शन थे, सबने उसकी वो रिपोर्टिंग भी कर दी कि तो ये कितना अच्छा काम हुआ है कि ये गलत काम ठीक हो गया। तो उनका बजर टेलीफोन का बजा और उन्होंने ड्यूरिंग द हियरिंग उनका पास फोन आया उनके एम्प्लॉयज का कि ये एमसीडी वालों ने हमारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करा दी है कि यहाँ का हम सामान लेके चले गए, भाग गए, वो जो ग्रिल लेके भाग गए। तो शैलेश सर को बहुत गुस्सा आया, बोले जब गलत काम हो रहा था तो कंप्लेंट हुई नहीं, जब गलत काम को सही किया जा रहा था तो कंप्लेंट हो गई। फिर तो इनका ऑर्डर बहुत ही धमाकेदार था, इन्होंने ऑर्डर में सब कुछ लिख दिया और ये लिख दिया इस ऑर्डर की एक कॉपी पुलिस कमिश्नर को भी भेजी जाए। और बेशर्मी की हद होती है। मतलब एमसीडी तो, सिविक बॉडीज तो इस तरह की करप्ट होती है। वो ग्रिल तो हट गई, वहां पे क्या था कि साइड में आर्य समाज के लिए 2 हवन कुंड थे। हवन कुंड जरा गहराई में होते हैं तो वो जो उनका जो फ्लोर लेवल है पायर्स का वो थोड़ा ऊंचा होता है और उनपे बॉडीज कम क्रिमेशन के लिए आती हैं। तो उन हवन कुंडों के साइड में जो थी वो उन्होंने कह दिया जी ये सेमी वीआईपी है। सीआईसी अप्रोच किया,
तो फिर वो बोले जी कि चलो जी ये भी हम हटा लेते हैं, और बकायदा उससे नंबरिंग दे दी सेमी वीआईपी नंबर साइडों को। तो दूरदर्शन वालों को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी और उन्होंने कहा सुभाष जी सवेरे 9 बजे हम चलते हैं और ये देखते हैं। मैं देख के ताज्जुब में रह गया, दूरदर्शन वाले भी ताज्जुब में रह गया कि वही सेमी वीआईपी क्रेमेशन वहां हो रहा था साइडों में। पहले दिन सीआईसी में मना करके आए कि हम नहीं करेंगे। अब जो इस तरीके के लोग होते हैं, या तो ये पैसे वाले होते हैं या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल होते हैं जो इस तरीके का क्रेमेशन करते हैं। ये हमारे समाज की भी बेवकूफी है। माँ मरे बाप मरे उसका गम नहीं है, चिंता इस बात की है कि अपना स्टेटस दिखाने की, देखो हमने वीआईपी क्रेमेशन किया, हमने सेमी वीआईपी क्रेमेशन किया। तो दूरदर्शन वालों ने सारी वीडियोग्राफी कर ली। एमसीडी के जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने उन लोगों के कान में जाके क्या कहा उनकी तरफ घूरने लगे। तो मैं समझ गया आज कुछ होगा गलत काम। और जैसे ही क्रेमेशन खत्म हुआ वो मेरी तरफ लपके, देवर पॉलिटिकल हैवीवेट्स। मेरा ड्राइवर बहुत समझदार था, वो सिचुएशन को भाप गया था, वो तो मेरे को फट से लेके वहां से रवाना हो गया। बाद में दूरदर्शन की कैमरा टीम का फोन आया कि जी इन्होंने हमारा कैमरा स्नैच किया, ये किया। पर ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले बड़े ट्रेंड होते हैं। ये क्या करते हैं, डमी रील रखते हैं अपनी जेब में, और कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो बहुत फुर्ती से वो डमी रील और एक्चुअल रील को चेंज कर देते हैं। जब उन्होंने ये प्रोसेस चेंज कर लिया तो उन्होंने कहा जी ये कोई प्राइवेट चैनल नहीं है, सरकारी चैनल है, आपने सरकारी कर्मचारी पे हाथ डाला है, उनके कागज चीरे हैं, आप इसका परिणाम देख लेना। तो उसमें जो कमीशन पार्टी थी उसमें कुछ पढ़े लिखे लोग भी थे। उन्होंने कहा भैया इनका कैमरा और कागज वापस दे दो, नहीं तो चक्कर पड़ जाएगा। फिर उन्होंने मेरे को फोन किया, मैंने कहा आप पहुंचो दूरदर्शन भवन मंडी हाउस, मैं भी पहुंचता हूँ। वहां गए, डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन से इजाजत ली और पुलिस कंप्लेंट कराई, पीटीआई में न्यूज आइटम दी, सब कुछ काम किया। और वो जो मतलब रेगुलेटरी पब्लिक अथॉरिटी भी होती है, पर जो रेगुलेटेड बॉडी थी आर्य समाज लोधी रोड, वो घबरा गए, उन्होंने मैनेजमेंट ही छोड़ दिया। तो ये एक एग्जांपल जो शैलेश सर ने शुरुआत की मैंने उससे करी। अब मैं आता हूं कि रेगुलेटरी पब्लिक अथॉरिटी क्या रोल है। मेरे को याद है शिलोंग में एक बार मैडम अरुणा राय ने एक कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें मेरे को और मेरी वाइफ को भी बुलाया गया था। और अरविंद केजरीवाल जी भी जब तक चीफ मिनिस्टर थे वो भी अपनी पूरी पार्टी के साथ पहुंचे थे। ये उससे 2-3 महीने पहले की बात है जब अन्ना हजारे का रामलीला मैदान में अनशन शुरू हुआ था। तो उस कॉन्फ्रेंस में मेरे दिमाग में भी एक चीज थी कि पहले भारत में एक ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, आज इतनी मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई हैं और इतने प्राइवेट बॉडीज जो हैं ये हमारे को डे टू डे लाइफ में डोमिनेट कर रहे हैं। बैंक्स हैं, टेलीकॉम कंपनीज हैं, मतलब प्राइवेट बॉडीज हमें डोमिनेट कर रही हैं। पब्लिक सेक्टर बहुत पीछे चला गया। प्राइवेट बैंक्स में इतने हिडन चार्जेस होते हैं कि कोई कल्पना नहीं कर सकता, पर वो गिमिक एक अपनी पब्लिसिटी करते हैं, ये फैसिलिटी वो फैसिलिटी, तो दुनिया उस तरफ भागती भी है। और वैसे भी पब्लिक सेक्टर में जो हाल है वो तो किसी से छिपा नहीं है। और मेरा आईसीआईसीआई बैंक में एक अकाउंट था, मेरे अग्रवाल इज स्पेल्ट इन सो मेनी वेज। तो मेरा एक 2000 रुपए का चेक था, तो उसमें सुभाष चंद्र अग्रवाल में जो अग्रवाल की मैंने बैंक में दी हुई थी उस चेक में उससे अलग थी। मैंने चेक डिपॉजिट कराया और देखा कि ये मेरे अकाउंट में आ ही नहीं रहा है। मैं बैंक गया, वो बोले जी आपका जो स्पेलिंग थी वो डिफर थी, तो हमने चेक कैश करा के उसे अपने सस्पेंस अकाउंट में डाल लिया है। अब आप ऐसा करिए, एक एफिडेविट तो आप दीजिए, ये प्रोफॉर्मा एक एफिडेविट जिसने चेक ड्रॉ किया था उससे लाइए और फॉर्मेलिटी पूरी करिए, इतने फॉर्म भरिए। मैंने कहा भाई अगर मेरे चेक में नाम डिफर करता था, स्पेलिंग डिफर करती थी, आप मेरा चेक बिना कैश कराए वापस कर देते। और ये आपको किसने हक दिया कि आप कंपनी को और सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे? बोले जी ये तो हमारा रूल है और हमारा रूल ही चलेगा। अब मेरे चेक आते हैं सरकारी विभागों से, अब सरकारी विभाग से कोई एफिडेविट लाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। अब शैलेश सर जैसे लोगों के संगति में रह के मेरे को थोड़ा बहुत आर्ट की नॉलेज हो गई थी,
और वो जो शिलोंग में मेरे, शिलोंग वाली बात बीच में रह गई, वो सॉरी। तो शिलोंग में मैंने ये क्वेश्चन उठाया था, ये पब्लिक सेक्टर, ये प्राइवेट सेक्टर पे आरटीआई क्यों लागू नहीं है? तो निखिल डे जी ने मेरे को बताया था कि लोगों को पता नहीं है, प्राइवेट सेक्टर पे आरटीआई लागू है, बट थ्रू रेगुलेटरी पब्लिक अथॉरिटी। तो मेरे को वो वाली बात ध्यान थी, और मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि रेगुलेटरी पब्लिक अथॉरिटी मानी गई है बैंकों के सिलसिले में, वहां एक आरटीआई लगा दी। पहले तो आईसीआईसी बैंक के सस्पेंस अकाउंट्स की जानकारी मांगी कि इनके यहाँ कितने तरीके के सस्पेंस अकाउंट है, उसमें कितना कितना रुपया पड़ा हुआ है अनक्लेम्ड, ऐसी और प्राइवेट सेक्टर बैंकों का टोटल एक्यूमुलेशन, इस तरीके की क्वेरीज लगा के आरटीआई लगा दी। रिजर्व बैंक का जवाब आया, ये तो हमारे पास इंफॉर्मेशन फिड्यूशरी कैपेसिटी में होगी, अगर होगी तो, और ये तो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर पे आरटीआई नहीं लागू होती है, और ये उनका कमर्शियल कॉन्फिडेंस है। जितनी एग्जम्पशन क्लॉजेस वो डिफाइन कर सकते थे वो कर लिए। मामला सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन पहुंचा। सत्यानंद जी मिश्रा, जो बाद में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी बने, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मैटर देखते थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो आरबीआई के हैं या अपीलेट अथॉरिटी होते हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जब शुरुआत हुई तो मिश्रा जी ने एक बात कही कि आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल के लोग हो, इतने बड़े लोग हो, आरटीआई को तो एक किनारे रख दीजिए, एक पेटिशनर इतनी बड़ी एक धांधली की तरफ आपका ध्यान दिला रहा है और आप उसकी तरफ गौर नहीं कर रहे, यही सबसे बड़े ताज्जुब की बात है आरटीआई के थ्रू। और फिर दूसरी बात ये कि जो सुभाष जी ने पूछा है वो आरटीआई के दायरे में आता है। आप रेगुलेटरी पब्लिक अथॉरिटी हैं, आप आईसीआईसीआई बैंक से ही जानकारी लेके दीजिए जो इन्होंने क्वेरीज पूछी हैं। वो जानकारी मेरे को मिली, आपको ताज्जुब होगा, 200 करोड़ रुपया, ये मेरे को नहीं याद खाली दिल्ली में था या पूरे इंडिया में, आईसीआईसीआई बैंक को सस्पेंस अकाउंट से वापस करना पड़ा सब लोगों का। तो अगर हम रेगुलेटरी पब्लिक अथॉरिटी के थ्रू पूछते हैं तो आरटीआई में प्राइवेट सेक्टर भी आ जाता है। और वैसे पूरे संसार में एक अकेला देश है जहां पे प्राइवेट सेक्टर पे आरटीआई है, पर वो एक तरीके का मीनिंगलेस है। साउथ अफ्रीका अकेला देश है जहां पे प्राइवेट सेक्टर सीधे सीधे आरटीआई में आता है, पर वहां पे कमीशन नहीं होता। वहां पे अगर आपको कोई मैटर अगर पब्लिक अथॉरिटी से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको सीधा कोर्ट में जाना पड़ता है। तो इसलिए इंडिया का आरटीआई एक्ट, हमारे जितने भी आरटीआई के इस समय सूत्रधार हैं, इन लोगों ने बनाया, ये ब्यूरोक्रेट्स और लीगल लोगों का बनाया हुआ एक्ट नहीं है। ये एक जो ग्राउंड लेवल पे, रूट लेवल पे काम करने वाले लोग थे, मैडम अरुणा राय, शायद शैलेश जी भी शामिल थे, यानी मेरे को पता नहीं है, इन लोगों ने ये वाला एक्ट ड्राफ्ट किया था, इसलिए इतना बढ़िया एक्ट ये बना। इट इज ए परफेक्टली बैलेंस्ड एक्ट। इसमें ये नहीं है कि जो मांगोगे वो मिलेगा। सेक्शन 8(1) में 10 एग्जम्पशंस हैं, तो ये नहीं है कि हर एक चीज देनी ही चाहिए आरटीआई में। कोई पूछे जी एटम बम के स्पेसिफिकेशन दे दो, तो हम कैसे दे सकते हैं? इट इज ए वेरी बैलेंस्ड एक्ट। इसीलिए जितने भी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, उन्होंने जब भी अपने अपने ट्रांसपेरेंसी एक्ट ड्राफ्ट किए, तो पहले दिल्ली आके जितने स्टेक होल्डर्स थे, कमीशन, पब्लिक अथॉरिटीज, आरटीआई एक्टिविस्ट, उनसे सलाह मशवरा करके अपने ट्रांसपेरेंसी एक्ट बनाए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में तो फाइल नोटिंग ही तो आरटीआई की जान होती है। डीओपीटी शुरू से कहता था फाइल नोटिंग आरटीआई में नहीं आती, और सीआईसी का वर्डिक्ट कहते थे कि फाइल नोटिंग आरटीआई में आती है। इसका भी समाधान मेरी पिटीशन से निकला था। मैंने डीओपीटी में एक पिटीशन लगा दी थी, जिसमें एक क्वेश्चन ये था कि आपने उन अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई करी जिन्होंने सीआईसी वर्डिक्ट जो फाइल नोटिंग थे, उन्हें अगर सही नहीं मानते थे तो आपने कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं किया? तो डीओपीटी के वकील ने मेरे को सीआईसी में बताया कि जी, आपकी पिटीशन का नतीजा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो उस समय मिनिस्टर के साथ साथ डीओपीटी का चार्ज भी देखते थे,
उन्होंने डीओपीटी सेक्रेटरी से कहा भाई अब फाइल नोटिंग आरटीआई में मान लो, नहीं तो मेरे को सबके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। उस तरीके से फाइल नोटिंग आरटीआई में कंफर्म हुई। बांग्लादेश गवर्नमेंट ने जब ये सारा एपिसोड देखा, उन्होंने फाइल नोटिंग को सीधे सीधे एग्जम्प्टेड लिस्ट में डाल दिया था। तो हमारा बड़ा बैलेंस एक्ट है और ग्लोबली ये 5वां या 6ठा रैंक करता है, पर प्रैक्टिकली ये फर्स्ट रैंक करना चाहिए, क्योंकि ये शुरू के 4-5 कंट्रीज हैं, उनका जो पॉपुलेशन है वो तो कुछ मिलियंस में है। हमारा एक्ट 130-135 करोड़ की आबादी को कवर करता है। वेरी बैलेंस्ड एक्ट। बस ये है कि ड्राफ्टिंग ऑफ आरटीआई एप्लीकेशन वो एक आर्ट है, इसीलिए कामयाब हुआ। मैंने लगभग 6000 आरटीआई एप्लीकेशन लगाई और 90% में तो मैं पब्लिक अथॉरिटीज ने मेरे को संतुष्ट कर दिया। मुश्किल से 10% केसेस में मेरे को सीआईसी पहुंचना पड़ा, जहां पे कि एक सीपीआईओ की ताकत तो क्या थी, एक सेक्रेटरी भी उसका जवाब नहीं दे सकता था, जहां पे कि बहुत ऊंचे लेवल पर डिसीजन होता था, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फाइल नोटिंग्स। तो मेरे को याद है कि उसमें पीएमओ से 14 महीने बाद जवाब आया था, जबकि 7 महीने एनडीए गवर्नमेंट, 7 महीने यूपीए गवर्नमेंट और 14 महीने बाद सेक्शन 8(1)(a) में डिनाई किया गया था कि इससे हमारे फॉरेन रिलेशंस अफेक्ट होंगे। फिर मैटर खैर वो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के बाद सीआईसी तक पहुंचा, पर सीआईसी ने प्रायोरिटी हियरिंग भी कर ली, पर कई महीने वर्डिक्ट रिजर्व रखा, शायद इसलिए कि इतने बड़े डिसीजन का श्रेय प्राइम मिनिस्टर को जाना था। इसलिए मेरे को पता नहीं कि किस वजह से वो इतने महीने वो डिसीजन डिले रखा गया। तो आरटीआई एक्ट हमारा बड़ा ताकतवर है, और जो आज का टॉपिक है ये और भी बड़ा खूबसूरत टॉपिक है कि रेगुलेटरी पब्लिक अथॉरिटीज का, जैसे मैंने आपको बताया आईसीआईसीआई बैंक का केस, ये थ्रू रेगुलेटरी पब्लिक अथॉरिटी आया। जो निगम बोध क्रिमेशन ग्राउंड का केस, उसमें भी रेगुलेटरी पब्लिक अथॉरिटी वाला मैटर था। अब आता है तीसरा केस। चक्कर क्या है कि मेरे को लगता है कि जो अफसर हैं पब्लिक अथॉरिटीज के, ये पहले ही बिके हुए होते हैं। मोबाइल कंपनीज जिस तरीके से डोमिनेट कर रही थी, इसके ऊपर मैंने आरटीआईज लगाई, और श्री बसंत सेठ जो थे उनके सामने मैटर्स पहुंचे। जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ट्राई, उनकी तरफ से जो ऑफिसर थे, सेठ साहब भी देख के ताज्जुब में रह गए। वो तो ऐसे केस को प्लीड कर रहे थे कि वो मोबाइल कंपनीज के पेड सर्वेंट्स हों। तो ये जो प्राइवेट बॉडीज जो थ्रू रेगुलेटरी पब्लिक अथॉरिटीज आरटीआई के दायरे में आती हैं, पब्लिक अथॉरिटीज के ऑफिसर्स को पहले ही फिट कर लेती हैं। इसीलिए ये इतना सब कुछ काम हो रहा है आज हमारे देश में। देखिए, मैं एमटीएनएल का एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक टेलीफोन सरेंडर करना था, एमटीएनएल चलता चला आता था नहीं। मैं सरेंडर करने के लिए जिस टेलीफोन एक्सचेंज, दिल्ली गेट टेलीफोन एक्सचेंज में गया, उसकी हालत देख के मैं ताज्जुब में रह गया बिल्डिंग की, कि कोई उसमें बैठ के काम नहीं कर सकता था। यूरिनल्स की हालत खराब, कैसे सब ओवरफ्लो हो रहा है, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। वहां के अफसरों ने बताया जी हम तो इतनी बुरी हालत में वीआरएस लेके ही जा रहे हैं, सफाई का तो नामो निशान नहीं। नेचुरली फिर लोग बागों को प्राइवेट सेक्टर की तरफ भागना पड़ेगा। और प्राइवेट सेक्टर जो है वो थ्रू रेगुलेटरी पब्लिक अथॉरिटी आंसरेबल तो हैं, और जिस ढंग से ट्राई के ऑफिसर्स ने वहां पे सीआईसी में बिहेव किया, तो उससे कोई भला होने वाला नहीं था। खैर, कहने का मतलब ये है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो आरटीआई में आता है, बट थ्रू रेगुलेटरी पब्लिक अथॉरिटी। और अब तो कई जगह ऐसा हो गया है कि कई बॉडीज तो ऐसी हैं, वो सीआईसी डिक्लेयर करता है उन्हें पब्लिक अथॉरिटी, वो जाके दिल्ली हाईकोर्ट से स्टे ले आते हैं, और वो स्टे, ये तो सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंचेस ने भी कई बार ये अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा है कि हमारे सबसे ज्यादा फ्लॉ यही है कि पार्टीज जो हैं पहले तो एक्स पार्टी स्टे ऑर्डर ले लेती हैं, बाद में एडजॉर्नमेंट पे एडजॉर्नमेंट लेती रहती हैं,
और अल्टीमेटली ये भी होता है वो केस ही हार जाती हैं। आज भी मेरे कई CIC वर्डिक्ट जो चैलेंज हुए हैं, मैं तो अब उनमें इंटरेस्ट ही खो बैठा कि कितने पुराने केस हो गए, वो 10-10 साल से स्टे ऑर्डर में पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो बड़े बड़े अच्छे डिसीजंस आए हैं, और ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने भी कई बार किया। मैं आपको बताता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में एक रिप्लाई में ये कहा कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट को CIC डिसीजन जो था 15/4/2011 का, कि मदर डेयरी RTI में आनी चाहिए, उससे सहमत होना चाहिए। अब मदर डेयरी ने जो है, जब उसे पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर किया गया तो हाई कोर्ट पहुंच गई, हाई कोर्ट में केस हारने के बाद अपील में भी पहुंच गई। तो जो हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, जो कि अब लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, मिस्टर R.K. माथुर, उन्होंने एक वर्डिक्ट में नोट किया कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसके बावजूद कि 4 मिलियन 40 लाख कैंडिडेट्स इसके द्वारा कंडक्टेड एग्जामिनेशंस में अपीयर होते हैं। और इफ्को का केस तो मिस्टर शैलेश गांधी को खूब अच्छी तरीके से पता है कि केस की पूरी हियरिंग हो गई, एंड मिस्टर शैलेश गांधी वाज पार्ट ऑफ दैट फुल बेंच, जिसमें मिस्टर गांधी थे और मैडम अन्नपूर्णा दीक्षित थी और शायद एक कोई और थे। हियरिंग पूरी हो गई इफ्को के केस में, और वो फाइल जो है CIC में कैसे गायब हो गई ये पता नहीं, और ये लोग रिटायर हो गए, वो हियरिंग लैप्स हो गई। जबकि उसमें दसियों हजार करोड़ रुपए साल की फर्टिलाइजर सब्सिडी इफ्को के थ्रू रूट होती है, और इफ्को अपने ऑफिसर्स को दिल्ली की प्राइम प्रॉपर्टीज वर्थ हंड्रेड्स ऑफ करोड़ गिफ्ट में दे देता है, और वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। BCCI आज भी पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। CIC हियरिंग पे स्टे है, CIC ऑर्डर को तो छोड़ो, वो मद्रास हाई कोर्ट से हियरिंग पे स्टे ले आए। चीफ जस्टिस RM लोढ़ा, उन्होंने रिटायर होते होते जो वर्डिक्ट दिया उसमें सारा कुछ तो ऐसा लिख दिया था कि भाई ये BCCI पब्लिक अथॉरिटी, ऑब्जर्वेशन से ऐसा लग रहा था कि शायद आखिरी पैराग्राफ में डिक्लेयर ही कर देंगे। आखिरी पैराग्राफ में उन्होंने कह दिया कि स्टडी करिए, लॉ कमीशन स्टडी करे, सब कुछ स्टडी करे। लॉ कमीशन, मेरे पास फोन आए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो उस समय थे, मेरे को याद नहीं कौन थे, कि हमें लॉ कमीशन में भेजनी है, आप अपनी जो अपने वो दी थी रिटर्न सबमिशंस, उनकी कॉपी भेजो। उन्होंने भेजी, लॉ कमीशन ने भी रिकमेंड कर दिया BCCI पब्लिक अथॉरिटी होनी चाहिए, आज भी नहीं। तो अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उनका भी यही झंझट है। क्यों नहीं है, मैं ऐसा एक इसमें कर दें कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और जो भी हैं इस तरीके की बॉडीज, वो ऑटोमेटिकली RTI एक्ट के दायरे में आ जाए। पॉलिटिकल पार्टीज का सबको पता है कि ना तो अमेंडमेंट किया गया एक्ट को, ना पॉलिटिकल पार्टीज ने CIC वर्डिक्ट को चैलेंज किया। जिस पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्लियामेंट में बैठ के वो RTI एक्ट बनाया, वो उसी एक्ट को फॉलो नहीं कर रहे। अल्टीमेटली मेरे को और ADR को खुद सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करना पड़ा। अब सीधी बात है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती RTI एक्ट में आना तो वो मना कर दें ये सारी सुविधाएं लेने से जो उन्हें मिलती हैं। अब गवर्नमेंट बंगलौज जो मिलते हैं इन केस ऑफ स्प्लिट इन पार्टीज और ये और वो, 7 जंतर मंतर रोड न्यू दिल्ली, जो एक जमाने में कांग्रेस डिवीजन से पहले 1969 से पहले देश का पावर सेंटर होता था अनडिवाइडेड कांग्रेस का। 1969 के बाद जब कांग्रेस में स्प्लिट हुई तो वो ओल्ड कांग्रेस के पास रह गया, जो कि न्यू कांग्रेस के मुकाबले ऑलमोस्ट डेड ऑर्गेनाइजेशन थी।
इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी बनी तो ओल्ड कांग्रेस का उसमें मर्जर हो गया था, वो जनता पार्टी के पास चला गया। जनता पार्टी के स्प्लिट के बाद अगर आप 7 जंतर मंतर रोड की हालत देख कर आइए कि वहां पे कितना एनक्रोचमेंट है, उसकी ओनरशिप का ही पता नहीं है। आरटीआई से पता लगाया तो उसकी ओनरशिप का किसी को पता ही नहीं है क्या है। तो क्यों नहीं ये चीजें, अगर नहीं चाहती पॉलिटिकल पार्टीज आरटीआई में आना, तो इस तरीके की सुविधाएं उन्हें मना हो जाए। और जो भी बॉडी आज गवर्नमेंट एकोमोडेशन मांगे, कोई भी एनजीओ, पॉलिटिकल पार्टी छोड़िए, कोई भी बॉडी मांगे, चाहे बीसीआईसीआई मांगे, चाहे डीडीसीए मांगे, कोई भी अगर इस तरीके से सब्सिडाइज रेट्स पे लैंड या बिल्डिंग मांगे तो उन्हें लिखवा देंगे आपको आरटीआई में आना होगा तो हम देंगे ये फैसिलिटी। सीधी बात है, बहुत सिंपल बात। आरटीआई एक्ट में अमेंडमेंट तो मैं चाहता ही नहीं। एक अमेंडमेंट मांगोगे 10 अमेंडमेंट एंटी आरटीआई के आ जाएंगे। इसलिए रूल्स में मॉडिफिकेशन की मांग करो जब भी मांग करनी है। अब इसी तरीके से मिसयूज बहुत करते हैं आरटीआई, पेटिशनर्स भी मिसयूज करते हैं, पब्लिक अथॉरिटीज भी मिसयूज करती हैं। जहां कुछ बात समझ में नहीं आती, अनकंफर्टेबल क्वेरी होती है, सेक्शन 6(3) में ट्रांसफर कर देते हैं, मल्टीपल ट्रांसफर्स। 6 कृष्णा मेनन मार्ग पे एनक्रोचमेंट एंड ट्रेसपास रहा पूरे टाइम। जब लोकसभा स्पीकर मैडम मीरा कुमार थी, मैंने जितनी आरटीआई डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट में लगाई, वो उन्होंने इंफॉर्मेशन उनके पास होती थी, पर सेक्शन 6(3) का मिसयूज करते वो सीपीडब्ल्यूडी के जितने ऑफिस होते थे उनमें ट्रांसफर कर देते थे। अरे इतनी जगह क्यों कर रहे हो, ज्यादा उस ऑफिस में कर दो जैसे कृष्ण मेनन मार्ग को हैंडल करता था। अल्टीमेटली सत्यानंद जी मिश्रा को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के नाते यह ऑर्डर देना पड़ा कि 6 कृष्णा मेनन मार्ग की सारी जानकारी अपनी वेबसाइट पे डालिए। और जाते जाते जो यूपीए गवर्नमेंट थी उन्होंने किस्सा ही खत्म कर दिया। उन्होंने 25 साल की लॉन्ग टर्म लीज पे बहुत सब्सिडाइज रेट पे बाबू जगजीवन राम फाउंडेशन को वो दे गए। और वो जो 2000 का कैबिनेट नोट था कि नो मोर समाधीज, नो मोर गवर्नमेंट वेगलोज कन्वर्टेड इन मेमोरियल्स, वो धरा का धरा रह गया, क्योंकि मैडम मीरा कुमार तो उसे जगजीवन राम मेमोरियल माने बैठी थी। ऐसे 12, 14, 16 रकाबगंज रोड ल्यूटन जोन में कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज नहीं हो सकती थी, पर वो तीनों बंगले मायावती जी को डिफरेंट कैपेसिटीज में अलॉटेड थे। उन्होंने तीनों को इकट्ठा करके एक वो बना रखा है। और ये भी आरटीआई में आया कि हमारे सीपीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स को अंदर ही नहीं जाने देते थे। वो यूपीए गवर्नमेंट जाते जाते उनके फाउंडेशन को, उनका जो एक ट्रस्ट बना हुआ था, उन्हें दे गए। मतलब जो 2000 का बढ़िया कैबिनेट नोट था वो साइड में धरा रह गया। आरटीआई क्या कर लेगी। मैं आरटीआई लगाता रहा, आरटीआई का उन्होंने तोड़ यही निकाला कि भाई इसे ये काम इस तरीके से कर दो। तो एक्ट हमारा बड़ा अच्छा है, पर जब जिसको नहीं मानना नहीं मानेगा। और इसके मिसयूज एप्लीकेंट्स भी बहुत करते हैं, ब्लैकमेलिंग का साधन बन गया। मैंने तो उसके भी उपाय बताए। मैं जाता हूँ सब जगह, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में लेक्चर के लिए, पब्लिक अथॉरिटीज में लेक्चर के लिए, और वहां पे ये सुझाव देता हूँ कि भाई आरटीआई एक्ट का मिसयूज रोकना ज्यादा जरूरी है, नहीं तो इतना बढ़िया एक्ट धराशायी हो जाएगा। मैं सबसे पहला जवाब ये देता हूँ कि 2005 में 2 रुपए का प्लेटफॉर्म था, आज 20 रुपए का है। तो 10 रुपए की फीस को बढ़ा के 50 रुपए कर दो, पर साथ में 20 फर्स्ट पेजेस जो कॉपीड पेजेस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दो। पेटिशनर को 50 रुपए का माल मिल गया, पर वो जो यूजलेस पेटिशन लगा के पब्लिक अथॉरिटीज को बर्डन करने वाले लोग हैं वो बाहर हो जाएंगे। बीपीएल कैटेगरी की तो ऑलरेडी फीस माफ है। 10 रुपए वसूलने के लिए सरकार को 100 रुपए से ऊपर तो खर्चने पड़ते हैं। 50 रुपए तो पोस्टल डिपार्टमेंट का ही हैंडलिंग चार्ज है, फिर बैंक की क्लियरिंग चार्जेस हैं, पब्लिक अथॉरिटी कितनी जगह एंट्री करती है, तो ये सब है। दूसरा,
पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है, आईडी प्रूफ कंपलसरी होना चाहिए। मैं विक्टिम हूं इस बात का। मेरे नाम से कम 50 आरटीआई एप्लीकेशन फर्जी लग चुकी हैं। मैंने कहा भाई उस वर्डिक्ट के अकॉर्डिंगली आईडी प्रूफ कंपलसरी कर दो, तो फेक आरटीआई एप्लीकेशन से तो बचोगे। इसमें तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। जब हम गवर्नमेंट से ट्रांसपेरेंसी चाह रहे हैं तो आईडी प्रूफ देने में क्या हर्ज है। और तीसरा, मिसयूजर्स को प्रोविजन पता है कि कैसे हम फायदा ले सकते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि देश में लगभग 1,60,000 पोस्ट ऑफिस हैं। उनमें से लगभग 4,500 पोस्ट ऑफिस में ये सुविधा है कि सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज में जो आरटीआई हम लगाते हैं वो पोस्ट फ्री चली जाएंगी। मजे की बात यह मिसयूजर्स को पता है। दिल्ली में एक मिसयूजर है जो कि ब्लैकमेलर भी है और उसके खिलाफ बहुत आरटीआई की शिकायतें भी हैं। वो कृष्णानगर पोस्ट ऑफिस में इस सुविधा का फायदा उठा के बर्डन कर दिया करता था एलजी ऑफिस, सीएमओ ऑफिस को, पर ऑर्डिनरी आदमी को नहीं पता। मैंने कहा 1,60,000 पोस्ट ऑफिस में सभी में ये सुविधा दे दो। हर एक पोस्ट ऑफिस चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, रोज शाम को एक पोस्ट बैग बड़े पोस्ट ऑफिस में जाता है जिसमें रेवेन्यू कलेक्टेड, बचा हुआ रेवेन्यू मटेरियल, पोस्टल स्टैम्प्स वगैरह और रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट वगैरह जाती हैं। उसी में 2-4 एप्लीकेशन आएंगी तो वो भी चली जाए। ये सुविधा देनी चाहिए। एक रिपीटेड सीआईसी वर्डिक्ट इंक्लूडिंग ए फुल बेंच वर्डिक्ट मेरी पिटीशन पे, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकमेंडेशंस कि भैया तुम पोस्टल ऑर्डर पे इतना खर्चा हो रहा है, हैंडलिंग कॉस्ट, आप आरटीआई स्टैंप निकाल दो। जैसे एक जमाने में रेडियो टीवी लाइसेंस फीस के स्टैंप होते थे, खर्चा भी बच जाएगा और आरटीआई एक्ट पॉपुलराइज भी होगा। पोस्टल डिपार्टमेंट कहता है, हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट ने सिक्योरिटी प्रिंटिंग बिल को लिखा। सिक्योरिटी प्रिंटिंग बिल का जवाब इतना फर्स्ट क्लास आया, बोले आरटीआई स्टैंप छापने के लिए कागज नहीं। मतलब रेड टेपिज्म, कोई सुधार चाहता नहीं है। इसमें एक्ट के अमेंडमेंट की कहीं जरूरत ही नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि भाई कई राज्यों ने और पब्लिक अथॉरिटीज ने गलत कर रखा था। 500-500 रुपए आरटीआई फीस थी। छत्तीसगढ़ में फर्स्ट अपील की भी फीस है, कहीं पे सेकंड अपील की भी फीस है। क्यों नहीं उसे यूनिफॉर्म कर दिया जाता? कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बड़ा अच्छा है। उन्होंने कहा भाई मैक्सिमम 50 रुपए होना चाहिए आरटीआई फीस। मेरा कहना यह था कि यूनिफॉर्मली 50 रुपए करके उसमें 20 पेजेस जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दो। पेटिशनर का भी खर्चा और टाइम बचेगा और रिस्पोंडेंट का भी खर्चा और टाइम बचेगा। अभी तक किसी को पता ही नहीं है। मैंने छत्तीसगढ़ में एक आरटीआई लगाई, छत्तीसगढ़ में आरटीआई लगाई, पहले ही बता देते कि फर्स्ट अपील के साथ 10 रुपए वो आरटीआई फीस अलग होती है। जब फर्स्ट अपील लगाई तो अपील ऑर्डर में लिख के आता है कि आपने आरटीआई फीस नहीं लगाई इसलिए हम अपील कंसिडर नहीं कर रहे। मेरे को क्या पता किस स्टेट में फर्स्ट अपील की फीस है, किस स्टेट में सेकंड अपील की फीस है। सेक्शन 27 और 28 जो पावर देते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज और स्टेट्स को अपने रूल्स बनाने की, उनमें सुधार होना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने तो रूल्स ही ऐसे बना दिए थे जब इनिशियली 2005 या 6 में, जो कि एक्ट के ही विपरीत थे। वो तो जब जस्टिस एपी शाह आया, फीस भी 500 रुपए रख दी थी। जब जस्टिस एपी शाह चीफ जस्टिस बने, उन्होंने आके वो रूल्स रिवाइज कराया, फीस 500 के 50 रुपए कर। तो सुधार होने चाहिए, पर रूल्स में होने चाहिए और एक्ट में संशोधन नहीं होना चाहिए। और एक और मैं कहूँगा, ऑनलाइन आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करना बड़ा ठीक है, सब कुछ है। इसमें कई बार तो हमारे को एसएमएस अलर्ट आ जाते हैं और ईमेल अलर्ट आ जाते हैं, और कई एसएमएस अलर्ट और ईमेल अलर्ट भी नहीं भेजते। आप अलर्ट भेजते हो तो उसमें ईमेल आईडी तो होता है, तो रिस्पॉन्स ईमेल ही क्यों नहीं कर देते? वो ज्यादा अच्छा है। ये भी एक सुधार होना चाहिए। कुछ आरटीआई एक्ट 2005 के बाद
जो पुराने एक्ट स्टेट्स के बने हुए थे वो तो रिपील होने चाहिए। दिल्ली आरटीआई एक्ट 2001 आज भी लागू है, जिसमें कि साल में मुश्किल से 800 एप्लीकेशन आती हैं और पूरा ढांचा, पूरा तंत्र, उसके अंदर पूरा खर्चीला तंत्र अलग से इन्वॉल्व हो रहा है, वो रिपील नहीं हो रहा है। बल्कि एक दिल्ली हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद भी रिपील नहीं हुआ। तो सुधार जरूर चाहिए, नहीं तो ये आरटीआई एक्ट जो है या तो कुछ ब्लैकमेलर्स का साधन रह जाएगा, या पब्लिक अथॉरिटी जिस तरीके से कर रही है उस तरीके से ये बर्बाद हो जाएगा। अब शैलेश सर ने बिल्कुल सही कहा, सेक्शन 41B का कंप्लायंस प्रॉपर नहीं है। ये तो एक सर्वे बताता है कि अगर सेक्शन 41B का कंप्लायंस हो तो 60 to 70% आरटीआई एप्लीकेशंस कम हो सकती हैं, पर उसके कंप्लायंस की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। अब 15 अप्रैल 2013 का जो डीओपीटी सर्कुलर है उसने तो इसका स्कोप और ज्यादा बढ़ा दिया है, सेक्शन 41B का, तो उसका कंप्लायंस होना चाहिए। मेरे को याद है 2015 में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब सीआईसी कन्वेंशन में आए थे तो सब यही उम्मीद कर रहे थे कि देखो क्या बोलते हैं, पर उन्होंने दो बातें बोली, और वही जब सीआईसी भवन का इनॉग्रेशन किया था वही दो बातें उन्होंने रिपीट करी। उसमें से एक तो बात वो थी जो मैंने रिजर्व बैंक वाली, जो मिश्रा जी ने आरबीआई वालों को डांट लगाई थी कि तुम्हें सोचना चाहिए कि आरटीआई की पीछे की भावना क्या है। तो प्राइम मिनिस्टर ने भी यही बात कही थी कि आरटीआई एप्लीकेशन के डिस्पोजल के बाद आपको पब्लिक अथॉरिटी को चाहिए कि उसके पीछे की छिपी हुई भावना पे ध्यान दे। अगर ये बात गौर कर ली होती तो शायद वो आईसीआईसीआई बैंक वाली आरटीआई की यहां तक जरूरत ही नहीं पड़ती। दूसरी उन्होंने कहा डिजिटलाइजेशन, वही सेक्शन 41B कहता है। और अफसोस ये बात है कि उन दोनों ही बातों पे भी अगर आज अमल हो जाए तो आरटीआई एक्ट का बहुत भला हो जाए। और एक और चीज है, जब आरटीआई एक्ट बना था तो इसके साथ में एक इसका जो सप्लीमेंट्री एक्ट था वो और आना था, वो आज तक नहीं आया। एक आम नागरिक को नहीं पता कि राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू एक्शन में क्या फर्क है, ये मेरे को भी नहीं पता था। मैंने भी कोई आरटीआई एक्ट की ट्रेनिंग नहीं ली। पर जो हमारे पहले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे वजाहत हबीबुल्ला साहब, उन्होंने मेरे अंदर पता नहीं क्या बात देखी, जब हियरिंग खत्म हो जाती थी वो कहते थे 5 मिनट रुको, वो मेरे को अलग से बैठा के बड़े प्यार से समझाते थे, और वो यही कहते थे मेरे को पता है कि तुम इस एक्ट का पूरा फायदा उठा सकते हो, पर तुम्हारे को एक चीज ध्यान रखना, दिस इज राइट टू इंफॉर्मेशन एंड नॉट राइट टू एक्शन। तो तुम्हारी जो आरटीआई में मैंने कमी देखी वो ये थी कि तुम ये समझ के लगाते थे कि ये राइट टू एक्शन है। मैं तो समझ गया, पर हर एक आम आदमी तो ये नहीं समझता। इसके साथ में एक पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल का भी एक्ट आना था, बिल्कुल पैरेलल लाइंस पे, वो आज तक नहीं आया। तो आरटीआई का आप इस्तेमाल ऐसे करिए कि ये राइट टू एक्शन भी बन जाए। और मैंने इसका ऐसे इस्तेमाल किया है। एक बार मेरे को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 10-12 जो फॉर्मर यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरीज थे उन्होंने लंच पे इनवाइट किया। वो बोले जी कि आप एक बात बताओ, आप इसे राइट टू एक्शन में कैसे कन्वर्ट कर देते हो। मैंने कहा जी आपका एक पोर्टल है pgportal.gov.in, मैं उस पर ये पोस्ट कर देता हूँ जो मैं चाहता हूँ, सजेशन देना चाहता हूँ, और फिर उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट मांग लेता हूँ, इंफॉर्मेशन ऑन एक्शन टेकन रिपोर्ट। बोले जी हमारा ही पोर्टल, हमारा ही डिवाइस की, और हमें नहीं पता इस बात का। खैर मैंने उसका इस्तेमाल करना शुरू किया, तो हमारे जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने क्या कारस्तानी करी, उन्होंने कहा ये तो सारा ही रिफॉर्म करके छोड़ देंगे। उन्होंने एक ऑर्डर इशू कर दिया, आज भी pgportal.gov.in पे जाओगे तो उसमें ये लिखा हुआ है सजेशंस आर नॉट एंटरटेन ऑन दिस पोर्टल। उन्होंने एक ऑफिस ऑर्डर निकाल दिया कि उसमें सजेशंस एंटरटेन नहीं किए जाएंगे। पर ग्रीवियंस तो आप उस पर लॉस कर सकते हैं, अपनी ग्रीवियंस तो आप उसमें सॉल्व कर सकते हैं। और सिमिलर पोर्टल प्रेसिडेंट की वेबसाइट पे भी है, helpline.rb.nic.in,
और एक ऐसा पोर्टल प्राइम मिनिस्टर की वेबसाइट पे भी है, राइट टू प्राइम मिनिस्टर। और मजे की बात यह, राइट टू प्राइम मिनिस्टर के अंदर एक अलग ऑप्शन है सजेशंस, तो मैं तो उस पर पोस्ट करता हूं। और पब्लिक अथॉरिटीज वाले इतने समझदार हैं, उन्हें मेरे को लिखना पड़ा कि आपने कैसे कह दिया कि ये पब्लिक ग्रीवियंस है और ये पोर्टल अलाउ नहीं करता। मैंने कहा पीएमओ की वेबसाइट पे जाके देखिए, उसमें सजेशन इज सेपरेट ऑप्शन देन पब्लिक ग्रीवियंस। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप आरटीआई एक्ट का इस्तेमाल करिए, बहुत ढंग से करिए। बहुत छोटा सा एक्ट है, इसे प्रॉपरली पढ़िए। मेरा मोबाइल नंबर लीजिए, मेरे को फोन करिए। शैलेश सर तो बिल्कुल ही आप लोगों के बीच में हर समय ही रहते हैं। अब 99% तो वो आपके साथ हैं ही, 1% सेवा का मौका मेरे को भी दे दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर नोट करिए, मैं आपको समझा दिया करूंगा। 9810033711। मैं हमेशा आपके लोगों के लिए, सहयोग के लिए तैयार हूं। पर आपको आरटीआई एक्ट ड्राफ्ट करनी पड़ेगी बड़े प्रॉपरली। आप सीधे सीधे वाई और रीजनिंग नहीं पूछ सकते, ऐसा क्यों हुआ और उसकी वजह क्या है। हाँ, कान को घुमा के पकड़ लो, फाइल नोटिंग्स मांग लो। फाइल नोटिंग में सारा क्यों और क्या लिखा हुआ होता है, और फाइल नोटिंग आरटीआई के दायरे में आती है। तो इसे आप ढंग से इस्तेमाल करिए। और मैं चाहता हूं कि आप और कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो, आप बीच बीच में पूछते रहिए, तो मेरा भी फ्लो बना रहेगा। नहीं तो मैं भी मिस कर जाता हूँ कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। थोड़ा मेरे को सहयोग करिए, कुछ पूछते रहिए बीच बीच में, जो चीज समझ में नहीं आए। ये सर, शैलेश सर, और बताइए, आप सजेस्ट करिए और क्या बोल सकता हूँ। रेगुलेटरी पब्लिक अथॉरिटी। यस यस मैडम। थैंक यू वेरी मच सुभाष जी। पहले तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। आपने बहुत ही पॉजिटिव तरह से आरटीआई का कैसे इस्तेमाल करना ये बताया और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सुझाव दिए। मुझे लगता है सरकार को आपको एडवाइजर बना देना चाहिए। ये बहुत ही यूजफुल है क्योंकि आपके बहुत ही यूजफुल सजेशंस हैं। अब मैं आपसे 2-3 चीजों पे बात कर लेता हूं, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन कर देंगे। यस सर। आप 2005 से जुड़े हुए हैं आरटीआई के साथ। हाँ जी। आप इसका फ्यूचर क्या देखते हैं? आपके हिसाब से 10 साल आगे में, मतलब जब आरटीआई के 25 साल हो जाएंगे, तो आरटीआई किस दिशा में जा रहा है? आपको क्या लगता है? व्हाट इज योर असेसमेंट? सर, कुछ जो बहुत ज्यादा एक्टिव लोग हैं, मैंने एक बात देखी थी, सीआईसी में सिर्फ 2 ही लोग सक्रिय थे, एक मैं और एक अनफॉर्चुनेटली कोविड में जिनकी डेथ हो गई, मिस्टर आर के जैन। तीसरा कोई मैंने सक्रिय व्यक्ति ही नहीं देखा। तो आप लोगों के फाउंडेशंस में से कुछ ऐसे सक्रिय लोग आने चाहिए। मैं अपनी कुछ व्यक्तिगत समस्याओं के कारण अब उतना सक्रिय नहीं रह पा रहा, मेरी अपनी कुछ विकट परिस्थितियां हैं, तो मैं नहीं सक्रिय हो पा रहा। मैं जितने भी, जब मैं आरटीआई में फुल्ली एक्टिव था, मैं जब कॉलेजेस और वहां पर यूनिवर्सिटीज में लेक्चर देने के लिए जाता था, तो वहां पे तालियां तो बहुत बजती थी। मैंने कहा जी, मैंने अपने जीवन में एक ध्येय बनाया है, जैसे कोई पूजा पाठ करता है ऐसे मेरा रिचुअल है 1 आरटीआई डेली। अगर किसी हफ्ते में आरटीआई एक भी नहीं लगी तो एक संडे को बैठ के 7 लगा देता था। और इतना मुश्किल काम नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। मेरे को एक आरटीआई पिटीशन ड्राफ्ट करने में 10 मिनट लगते थे, जो कि न्यूज आइटम बनती थी। आई वॉज ए न्यूज मेकर। मैं कहता था चलो आप जितने लोग मेरे को सुनने आए हो, वो अपने जीवन का एक ध्येय बना लो कि हम महीने में एक पब्लिक इंटरेस्ट आरटीआई लगाएंगे, तो ही काम बहुत हो जाएगा। और कोई आता ही नहीं सामने। जब मैं 1 मैन आर्मी था और मैं फुल्ली एक्टिव था, रात को 2-2 3-3 बजे तक काम करता था, सवेरे 8 बजे से लग जाता था। मैंने कहा भाई मेरे को भी, जैसा आपने, मैंने कई फाउंडेशन से कहा भाई जैसे आपने केजरीवाल जी को सपोर्ट किया था, मेरे को भी एक ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो, मेरे को 1 पैसा नहीं देना, आप ही उसे मैनेज करो, आपका मैनेजर ही मैनेज करे। सबने कह दिया जी हमारे तो फंड्स एग्जॉस्ट हो गए, ये हो गए, वो हो गए। तो
दिक्कत सारी ये आ रही है। और फ्यूचर की बात ये है कि आरटीआई एक्ट में फ्यूचर तो अच्छा हो सकता है अगर कोई सक्रिय और सिंसियरली आरटीआई एक्टिविस्ट इसमें एंटर हो जाए, जिनका मोटो ब्लैकमेलिंग नहीं हो और नेशनल इंटरेस्ट हो। मैं तो यही अपेक्षा करता हूं कि शैलेश सर के मोटिवेशन में कुछ इस तरीके के लोग आ जाएं, और हमारे बहुत सारे रिटायर्ड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, मैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हूँ, मैंने उन्हें भी ये सजेस्ट किया आप अपने मेरे को हटाइए और शैलेश सर को लीजिए, और जो और एक्टिव इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो रिटायर्ड है उन्हें लीजिए, और कुछ करिए इस देश के भले के लिए और आरटीआई एक्ट के भले के लिए। सुभाष जी, आपने ब्लैकमेलिंग का काफी बार जिक्र किया। हाँ, आपकी एक बात मैं शैलेश सर बीच में टोकूंगा, आपकी एक बात मेरे को बहुत अच्छी याद है। आपने कहा ब्लैकमेलर, तो आपने एक बार मेरे को इसका बड़ा प्रॉपर जवाब दिया था। ब्लैकमेलर तो गलत है, पर जिसे ब्लैक किया जा रहा है वो ज्यादा गलत है। आपने ये बात उसी के साथ जोड़ रहा हूं, डीओपीटी का ही सर्कुलर है कि सब आरटीआई एप्लीकेशंस और रिस्पॉन्सेस वेबसाइट पे डाली जाए। अगर इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे है तो ब्लैकमेल कैसे कोई कर सकता है? सर मैं इसका जवाब देता हूं, इसका भी मिसयूज हो रहा है, और ये जिस पर्पस से ये डाली जानी थी वो पर्पस ये था कि एप्लीकेशन लगाने से पहले वो शायद वेबसाइट ही देख ले। अब इंडियन रेलवे 2006 से ये सारे रिस्पॉन्सेस डाल रहा है, तो अगर मेरे को एक आरटीआई एप्लीकेशन लगानी है तो मैं कितने रिस्पॉन्सेज स्टडी करूंगा। अब इसका भी मिसयूजर जो है हमारे देश में, नटवर लालों की कमी नहीं है सर। मौलाना आजाद डेंटल कॉलेज में एक एप्लीकेंट ने, वहां के प्रिंसिपल डायरेक्टर मेरे अच्छे फ्रेंड थे, तो वो जानते थे मेरे को आरटीआई की नॉलेज है, बड़ी एब्यूजिव लैंग्वेज में एक आरटीआई एप्लीकेशन लगा दी। तो उन्होंने मेरे को बुलाया, मैंने कहा जी आप सरकारी नौकरी करते हो, गाली खाने के लिए थोड़ी करते हो, कर दो इसकी पुलिस कंप्लेंट। बोले ये छोड़ो, कौन पुलिस के चक्कर में पड़े, आप इसका जवाब हमें बता दो कैसे। मैंने उसका जवाब लिखवा दिया, जवाब भी लिखा, जो रिस्पॉन्स था वो भी वापस आ गया, और उसके साथ फर्स्ट अपील भी आ गई। अब वो ताज्जुब में वो कहते हैं जी रिस्पॉन्स तो वापस आ गया, तो ये फर्स्ट अपील क्यों वापस आ गई, फर्स्ट अपील कैसे आ गई। मैंने कहा जी वो आप वो ट्रांसपेरेंसी वाला सिद्धांत फॉलो कर रहे होंगे कि वेबसाइट पे डालो। बोले वी आर परफेक्टली ट्रांसपेरेंट। मैंने कहा जी जो मिसयूजर है उसने उसका रिस्पॉन्स तो वहां देख लिया और उसके बेस पे फर्स्ट अपील लगा दी। और आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मैं 2014 तक तो बहुत एक्टिव था ही, उसके बाद भी थोड़ी बहुत लगाता रहा। पार्लियामेंट हाउस की जो कैंटीन्स की सब्सिडी थी, इस पे तहलका मच गया मेरी आरटीआई एप्लीकेशन से। राज्यसभा में एक मेंबर ने, मैं नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि हमारे देश के कानूनों ने मेरा हाथ बांध रखा है कि पार्लियामेंट प्रिविलेज, वो मेरे को बैठ के पार्लियामेंट में गालियां दे रहा है बाय नेम, पर मैं उसका नाम आपके सामने नहीं ले सकता। राज्यसभा में खड़े होकर यह बयान दिया ये कोई कॉन्स्पिरेटर की आरटीआई थी जो कि पार्लियामेंटेरियंस के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। ये हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, तो इसमें आप क्या फ्यूचर देखेंगे आरटीआई का। 2025 तक पता नहीं गवर्नमेंट आए, कैसे पार्लियामेंटेरियंस आए, इसलिए मेरे को नहीं पता क्या होने वाला है। आई कांट फोरकास्ट। और आज उस समय जो लोकसभा स्पीकर थी उन्होंने तो फेवर किया था पार्लियामेंट्री हाउस की कैंटीन्स की सब्सिडी का, और आज के स्पीकर ने अल्टीमेट क्या फायदा हुआ है, आज के स्पीकर ने वो ही पार्लियामेंट्री हाउस की कैंटीन की सब्सिडी खत्म कर दी। दो स्पीकर की पोस्ट वही है, पर्सन अलग अलग है। सिस्टम क्या भला करेगा सर। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आपने बड़ा अच्छा किया, मैं यही तो कहता था आप इंटरप्शन करते रहिए तो मेरी भी जबान खुलती रहेगी। जेनरिक मेडिसिन सस्ती होती हैं, क्या सस्ती होती हैं आप सुनिए। जो ब्रांडेड मेडिसिन पे एमआरपी छपी हुई होती है वही जेनरिक मेडिसिन पे एमआरपी छपी हुई होती है। मैं आपको
नाम लेके बताता हूँ, वॉबलीगॉस पॉइंट 3, 100 रुपए की स्ट्रिप, जेनरिक मेडिसिन, बहुत पॉपुलर कंपनी की, रिनाउंड कंपनी की, उसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 12.5 रुपए है। मैंने ये सजेशन देके, और आरटीआई किसी और ने पिटीशन लगाई थी, मैं उसमें बीच में इंटरवीनर बन गया। जुल्का जी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, उनके सामने मैटर पहुंचा, उन्होंने कहा ये तो बड़ी वो है। उन्होंने सिर्फ रिकमेंड किया था, डायरेक्शन तो सीआईसी दे ही नहीं सकता, एक्शन टेकन तो सीआईसी की पावर ही नहीं है। उन्होंने खाली रिकमेंड किया था कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी को कि ये सजेशंस पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत कामयाब, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इन सजेशंस को कंसिडर करिए, स्टडी करिए, बस ये दिया था। रिकमेंडेशंस तक चैलेंज हो गई हाई कोर्ट में। आप बताइए आरटीआई का फ्यूचर क्या करेगा? जब सेंट्रल गवर्नमेंट मानने को तैयार है कि ये चीज आरटीआई में होनी चाहिए और मदर डेयरी फिर उसके बावजूद अपील में जा रहा है, तो आरटीआई का फ्यूचर क्या करेगा? अभी जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है 13/11/2019 का, इट इज अ ब्यूटीफुल कवर पेज स्टोरी। चीफ जस्टिस का दफ्तर आरटीआई एक्ट आ गया, पर उसके अंदर 2 वर्डिक्ट और हैं, और 2 वर्डिक्ट में से एक वर्डिक्ट का तो जवाब बड़ी मुश्किलों से, मतलब कि आरटीआई एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए सीपीआईओ ने दे दिया। जिस किस्म से सेक्शन 11 की धज्जियां उड़ाई सीपीआईओ ने, यहां तक कि सीआईसी को भी ये कहना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट में आरटीआई हैंडल करने वालों को ट्रेनिंग की जरूरत है। और दूसरी एप्लीकेशन जो जस्टिस एपी शाह के सुपरसीड होने की थी, वो जवाब नहीं दिया गया, और मिस्टर रंजन गोगोई जो रिटायरमेंट के बाद जितने इंटरव्यू उन्होंने टीवी में दिए 45 मिनट के, सब में उन्होंने ये कहा एक आरटीआई लगाओ सुप्रीम कोर्ट में कि उन्हें सुपरसीड कैसे किया गया। जब मामला रिमांड बैक होके फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी पर पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी पे, तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को मैंने ये बात लिखी, मैंने कहा मिस्टर रंजन गोगोई जो बेंच को हेड कर रहे थे वो खुद कह रहे हैं आरटीआई सब्जेक्ट मैटर आपके सामने, आप अलाउ कर दो। ये बोले वो मिस्टर रंजन गोगोई ने जो कहा था वो इन कैपेसिटी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा था। अब वो जो दे रहे हैं वो एज राज्यसभा मेंबर है या इंडिविजुअल कैपेसिटी में दे रहे हैं। आप बताइए आरटीआई का फ्यूचर क्या है? अब मैं आपसे पूछता हूँ कि हालत में आरटीआई का फ्यूचर, सर आप मेरे से ज्यादा तजुर्बेकार हैं, आप ही लोगों से बैठ के मैंने जो कुछ मैं आज बोला हूँ, आप ही लोगों की संगत में रह के सीख के बोला हूँ। आप बताइए आरटीआई का फ्यूचर क्या है? नहीं, एक चीज मैं उम्मीद करता हूं, हकीकत में सेक्शन आरटीआई ने ये कहा है कि अपील कमीशन के आगे नहीं हो सकती है। रिट जुरिस्डिक्शन का मेरे हिसाब से कोर्ट्स बहुत गलत इस्तेमाल कर रही है। एक ही जजमेंट देखा है मैंने जहां पे उन्होंने कहा कि रिट जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, इसके लिए इसको कुछ नहीं करेंगे, बट वो बहुत लंबी चौड़ी बात है। मेरे हिसाब से कोर्ट्स रिट जुरिस्डिक्शन के नाम पे अपील्स को सुनती हैं, जो गलत है। किसी दिन उम्मीद करता हूं वो रिजॉल्व होगा, कोर्ट्स खुद समझेंगे कि वो गलत कर रहे हैं। चलिए कोर्ट्स के बारे में तो हम डिस्कस ना करें तो ज्यादा अच्छा, उसे नहीं करेंगे, टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है, बिना बात को कोई और कंट्रोवर्सी नहीं खड़ी हो जाए। आरटीआई करते हैं अभी आई थिंक ऑडियंस के क्वेश्चंस ले लेंगे। अरविंद जी, या यस सर, सुचिता का एक सवाल है। मैम हैड अ क्वेश्चन। हाँ, तो सुभाष जी मेरा क्वेश्चन है, आपने जैसे मदर डेयरी के बारे में कहा, हम ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को फॉलो कर रहे हैं, शैलेश जी को भी पता है कि एग्जैक्टली द सेम वहां पे हो रहा है। ये जो एक्सचेंज है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, फर्स्ट लाइन रेगुलेटर है, और इनका भी सीआईसी जजमेंट है, तो उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट गए और अभी डिवीजन बेंच के सामने है, और 12-13 साल से ज्यादा वो वहां पे अटका है, और वो डेलिबरेटली डिलेस कैसे, जुडिशियल डिलेस का इस्तेमाल कैसे करना है, इसका फायदा उठा रहे हैं। तो ये सीधी सी बात है कि सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एज ए रेगुलेटर,
एक ऑर्डर अगर इशू करे कि यू हैव टू फॉलो, यू आर सब्जेक्ट टू आरटीआई, या फाइनेंस मिनिस्ट्री एक लाइन से लिख दे या गेजेट में दैट यू कम अंडर आरटीआई बिकॉज यू आर अ फर्स्ट लाइन रेगुलेटर, तो बात खत्म हो जाती है। तो जब ये दिल्ली डिवीजन बेंच में 15 साल से इट्स पेंडिंग, आई थिंक 2006 का ऑर्डर है ये, जब मनी लाइफ शुरू हुआ था तभी प्रकाश करदले जी ने हमारे लिए ये आर्टिकल लिखा था, तभी से इट्स पेंडिंग। So why can't the finance ministry be under pressure to say these are first line regulators, they have to come? So can we build public support or something to put pressure? Because yes, madam, you may initiate. I am with you wholeheartedly. अब ये आपने अभी बताया तो मैं अभी एक और केस याद आ गया, आप मेरे को बोलते रहिए, याद आता रहेगा। मैंने एक न्यूज आइटम पढ़ी थी कि किसी सज्जन को पुराने कागजों में कुछ शेयर सर्टिफिकेट उसके फादर के मिल गए, उस 300 करोड़ रुपए के शेयर्स थे। मैंने एक आरटीआई लगाई, पहले सजेशंस ग्रीवेंस पोर्टल पे, राइट टू प्राइम मिनिस्टर, हेल्पलाइन, सब पे मैंने पोस्ट किए, फिर उन पे एक्शन टेकन रिपोर्ट भी मांगी। आज क्या है कि इतना टीडियस वो है प्रोसीजर टू कन्वर्ट फिजिकल इनटू डीमैट और ये और वो, और अब एजिड लोग हैं, उनके सिग्नेचर हाथ भी काम लगे, सब कुछ इतना टीडियस प्रोसीजर, और हर एक कंपनी का अलग प्रोसीजर है, किसी का यूनिफॉर्म प्रोसीजर नहीं है। मैंने सजेशन दिए कि एक तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है और आईईपीएफ है, वो उनका एक कॉमन प्रोसीजर बनाए और सिंप्लीफाई करके बनाए, जिससे कि आम आदमी भी कहीं सफर नहीं करे। और ये सब मैंने कई क्वेरीज बना के भेजी। तो जब मैटर सीआईसी में पहुंचा, मैडम वंजना सरना, ये हाल का ही है मैटर, ये अभी दिसंबर 2020 का ही मैटर है, तो पब्लिक अथॉरिटी रिप्रेजेंट ही नहीं हुआ जी। हम तो लॉकडाउन की वजह से, मतलब वो था कि लॉकडाउन है, तुम टेली कॉन्फ्रेंसिंग पे आते, मैं भी टेली कॉन्फ्रेंसिंग पे था, मौजूद ही नहीं रहे। अब वो मेरे से बड़ी खुश थी कि आपने बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट मैटर उठाया, उन्होंने बड़ा अच्छा ऑर्डर भी दिया, और वो बाद में संकोच करें। मैंने कहा जी आपको ये चाहिए कि जितना भी अनक्लेम्ड सिक्योरिटीज हैं उन सबको वेबसाइट पे डालो। आईईपीएफ के पास क्या क्या है, भाई उनके नॉमिनी पढ़ लेंगे, कोई तो पढ़ लेगा ना कि ये अनक्लेम्ड सिक्योरिटीज है बस। और उस समय हियरिंग पे वो बिल्कुल एग्री कर रही थी, बाद में बहुत सोचा विचारा होगा, उन्होंने कहा कि कहीं मैं 81J में गलत ऑर्डर नहीं पास कर दूं। उन्होंने अपने ऑर्डर में ये बात लिखी, मैं इसलिए ये नहीं लिख रहा कि आई एम कंफ्यूज कि 81J में है या नहीं है, पर उन्होंने डायरेक्शन दी कि इनके सजेशंस पे जो भी एक्शन टेकन रिपोर्ट है वो फाइल की जाए। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को डायरेक्शन दी, उन्होंने आईईपीएफ पे डाल दिया कि आप इसका जवाब दीजिए। आईईपीएफ ने दूसरे पे डाल दिया। ये ऑर्डर है 23/12/2020 का, आज तक मेरे को जवाब नहीं मिला है, एक दूसरे पे डाले जा रहे हैं, क्योंकि कोई स्टडी करने को तैयार नहीं है। जो चल रहा है चलने दो। मैं तो मनी लाइफ फाउंडेशन से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं आज भी 2 लेटर्स टू एडिटर डेली लिखता हूं, और उसमें मोस्टली जो है वो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं। आप अगर मेरे सजेशंस को अगर आप ठीक समझती हैं तो उन्हें आगे उठाइए। अभी मैं नॉमिनेशन की बता रहा था कि नॉमिनेशंस का इतना टीडियस प्रोसीजर है कि LIC ने बड़ा अच्छा कर रखा है सक्सेसिव नॉमिनेशन। मैं और मेरी वाइफ 2 जन हैं, वी अडॉप्टेड नो चाइल्ड थ्योरी। मेरे जितने भी पॉलिसीज थी उनमें मेरी वाइफ नॉमिनी, और मेरी वाइफ की पॉलिसीज में मैं नॉमिनी। ऐसे PPF, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक अकाउंट्स में हम एक दूसरे के नॉमिनी। और कल को हम दोनों ही सीनियर सिटीजन हैं, दोनों के कुछ हो सकता है तो पैसा तो गवर्नमेंट का हो गया। LIC में तो सक्सेसिव नॉमिनेशन का प्रोसीजर था, मैंने अपने नफीस को सक्सेसिव नॉमिनेशन करवा दिया कि फर्स्ट राइट मेरी वाइफ का, उसके बाद इन लोगों का। अब जब मैं बैंक में गया वो तो रिजर्व बैंक ने मेरे को पूरी एक कहानी पढ़ा दी कि बैंकिंग एक्ट ये कहता है, नॉमिनेशन एक्ट ये कहता है कि सिंगल नॉमिनी हो सकता है खाली। जब मैं गया PPF में,
सक्सेसिव नॉमिनेशन के लिए, वहां दूसरी कहानी वो बोले जी जॉइंट नॉमिनेशन हो सकता है एंड यू विल हैव टू फिक्स कि कितना परसेंट किसको मिले। सपोजिंगली मैंने अपनी वाइफ को 90% चलिए 50% दे दिया, 50% मैंने अपनी वाइफ को दे दिया, 50% मैंने अपने नेफ्यू को दे दिया। अब मेरी और मेरी वाइफ की डेथ के बाद जो मेरी वाइफ का 50% शेयर था उसका कौन होगा क्लेमेंट? अब उसके लिए सक्सेशन लॉ कितने कम्बरसम प्रोसीजर है। तो सिस्टम जो है रिफॉर्म होना नहीं चाहता किसी हालत में। आप बताइए ना, जो मैटर आप बता रही थी सेबी वगैरह का, ये मेरा आरटीआई का सब्जेक्ट मैटर था। कमिश्नर मेरे से एग्री कर रही हैं और उन्होंने कहा कि इनको पॉइंट टू पॉइंट आप इनके एक्शन टेकन रिपोर्ट दो, इनके सजेशंस का। पब्लिक अथॉरिटीज एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर कर रही हैं। तो मैं तो मनी लाइफ फाउंडेशन से रिक्वेस्ट करूंगा, आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, आप इन मैटर्स को उठाइए। आई एम विद यू, मैं आपको भेजूंगा इनपुट्स जो मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखता रहता हूँ। सर डेफिनेटली, हम तो डेफिनेटली करेंगे। वी विल बी इन टच विद यू फॉर इट। Arvind, next. Yeah, yes, ma'am. We also have Vinita ma'am who is here. Vinita ma'am is also a very senior RTI activist. No, I know her from very well, Pune. Madam So, Vinita ji. हाँ ma'am, so Vinita ma'am, can you please unmute yourself? नमस्ते विनीता जी, सुभाष अग्रवाल। Yes, namaste ji. Can you hear me, Arvind? Yeah, yes ma'am, I can hear you ma'am. Yeah. Namaste सुभाष जी, मुझे नमस्ते। ये पूछना, नमस्ते। Actually, I'm a bit confused. मेरे पास दो questions है। एक है कि Maharashtra and several other states, they have 10 rupees court fee stamp for RT application. आप बोल रहे हैं कि वो 50 rupees, which should be done for every state and make it common. So I want to know that when actually, if there was section for disclosures, a citizen has a right to free information, तो आप क्यों बोल रहे हैं कि 10 रुपए के इंस्टेड आपको 50 रुपए वो स्टैंडर्ड करना चाहिए वो? और अच्छा मैडम, इसके एक एक करके इसका जवाब सुन लीजिए, नहीं तो मैं एजेड पर्सन हूँ, भूल जाता हूँ। इसका जवाब सुन, वो सिर्फ इसलिए आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैंने ये कहा था 50 रुपए इंक्लूसिव ऑफ कॉपिंग चार्जेस ऑफ फर्स्ट 20 पेजेस। But most of them don't need the copying charges for first 20 pages. Now, even if somebody is asking RTI information for one, maybe a page, or which he can just send it by courier, by the public authority, तो उसको भी 50 रुपए का बर्डन हो जाएगा ना? नहीं, सुनिए, बीपीएल कैटेगरी के लिए तो आरटीआई फीस वैसे ही माफ है। और देखिए, जब हर एक चीज की कॉस्ट बढ़ गई, हर एक पब्लिक, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे, जैसे एनसीपीआरआई वाले भी डिफर करते हैं मेरे इस सजेशन से, पर मैंने अपने तजुर्बे से ये पाया कि जितने भी मिसयूजर्स हैं वो इस 10 रुपए की फीस का बड़ा मिसयूज कर रहे हैं। क्योंकि आप 2005 से लेके 2020 तक में आप और गवर्नमेंट फीस का वो कंपैरिजन देख लीजिए, वो किस कंपैरिजन में बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। पहली बात तो कॉपिंग चार्जेस लगभग सभी को देने पड़ते हैं, और दूसरी बात ये कि जब हर एक गवर्नमेंट फीस बढ़ गई, एफिडेविट जब 2 रुपए का होता है तब 10 रुपए का होता है, प्लेटफॉर्म फीस पहले 2 रुपए का होता था 20 रुपए होता है। तो अगर हम क्यों ना एक यूनिफॉर्म फिक्सिंग कर दें। आज स्टेट्स और हाई कोर्ट्स में 50-50 वो 500-500 रुपए भी फीस थी ना, उसे सुप्रीम कोर्ट ने 50 रुपए पे ला के रख दिया है। अब कई स्टेट्स में फर्स्ट अपील की अलग फीस है, सेकंड अपील की अलग फीस है। व्हाट आई सजेस्टेड, ओनली एट रूट लेवल 50 रुपए इंक्लूसिव ऑफ कॉपिंग चार्जेस फॉर 20 पेजेस। हाँ, मैं पहले बता रहा हूँ इस मैटर पे, टू प्रिवेंट मिसयूज, दिस इज माय मोटो। आज 40,000 की पेंडेंसी है, मैं गारंटी से कहता हूँ कि इसमें से मेजॉरिटी जो है वो मिसयूज। अभी एलजी ऑफिस की, दिल्ली के एलजी ऑफिस में एक ही मिसयूजर जो ब्लैकमेलर था और बड़ा नोटोरियस पर्सन था, 141 सीआईसी पिटीशन डिसमिस हुई है। एक सीआईसी हियरिंग कितना कॉस्ट करती है? उसकी 141 पिटीशन में तो पोस्टल चार्जेस भी नहीं लगे थे। आपने मेरी पूरी बात सुनी होगी तो। और ऐसे ही उसने पहले सीएम ऑफिस को बम्बार्ड कर रखा था। तो ऐसे बम्बार्डमेंट करने वालों को जब 50 रुपए फीस होगी तो थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस अफोर्डिंग लोग कर सके
बीपीएल कैटेगरी के लोगों के लिए माफ है। अब बीपीएल का भी मिसयूज हो रहा है। एक बार जो पहले जम्मू कश्मीर के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे मिस्टर सूफी, उन्होंने मेरे को एक सीआईसी के डिनर में बताया था कि जो ठेकेदार हैं वो बीपीएल कैटेगरी के मजदूरों के नाम पे आरटीआई लगवा के कॉपिंग चार्जेस सारे फ्री करवा लेते हैं। Sorry, but I a bit disagree with you because नहीं, बिल्कुल एनसीपीआरआई भी मेरे से डिसएग्री करती है इस पॉइंट। every law has got misuse, and in RTI for some 0.1% users who are misusing, more than 99% should pay ₹50. So that's what I just disagree upon. मैडम यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। Next question. No. नहीं, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। आपने ये जो डाटा किया है ना कि 1% आर यूजर्स, 1% आर मिसयूजर और 99% आर यूजर्स। No, but they are misusers because the government is not putting it on the website. We need not feel sorry for the government who is not giving free information and thinking of. मैं इस डाटा पे डिफर करता हूँ। चलिए, मैं पहले कह चुका हूँ कि इस पॉइंट पे एनसीपीआर भी मेरे से डिफर करती है। Yeah, sorry, even others have to ask the questions, but just one question. आप दूसरा क्वेश्चन पूछिए, आपका दूसरा क्वेश्चन और था। हाँ, what is your definition of asking for national interest? इसकी कोई definition? Because we have Section 8 already, wherein anything that is to do with national integrity, the information will be denied. So when you say that the RTI user should you ask questions of national interest, I just want to know the definition. देखिए मैडम, ये जो आरटीआई एक्ट है ये ड्राफ्ट किया हुआ है मेनली एनसीपीआरआई वालों का। उन्होंने बहुत सोच समझ के उसमें ये लगाया है, नेशनल इंटरेस्ट वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। मैं इस बात से मैं मानता हूं कि अगर गवर्नमेंट उसे नेशनल इंटरेस्ट में, मैंने पहले कहा जैसे आरटीआई का मिसयूज पेटिशनर्स करते हैं, गवर्नमेंट भी उससे ज्यादा ही करती है। मैं पहले कह चुका हूं, अगर गवर्नमेंट उसका मिसयूज करेगी नेशनल इंटरेस्ट वाले का अपने वे में डिफाइन करके, तो करेगी। उसके लिए फिर हमें कोर्ट ही जाना पड़ेगा, और क्या रास्ता है? सीआईसी जाएंगे, फिर कोर्ट जाएंगे। बाकी पब्लिक अथॉरिटीज मिसयूज करती हैं, आई डोंट डिफर। मैं तो इस बात से सहमत हूँ, डिफर नहीं कर रहा आपसे, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि पब्लिक अथॉरिटीज भी सेक्शन 6(3) का या सेक्शन 8(1) का मिसयूज करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपकी बात सही है कि नेशनल इंटरेस्ट वाले पॉइंट पे अपने आप उसे डिफाइन करके, इट इज ए वेग डेफिनेशन। नेशनल इंटरेस्ट की तो बहुत वेगनेस है ना, इसमें कैसे भी कोई भी कर सकता है, तो मैं उसकी क्या डिफाइन करूं? जिसे मिसयूज करना होगा वो उसको एग्जम्पशन को अप्लाई करके वो करेगा, फिर तो रेमेडी सीआईसी है या कोर्ट है। थैंक यू सो मच। Yes. Yes, sir. Suchita ma'am, I think you had a question that you wanted to ask. Mr. Virendra Jain has a question. I think you should unmute him. I want to ask it on. I'm unable to see Mr. Virendra Jain here. Virendra Jain is the name. No, ma'am, he's not on the call. I think he might have dropped off for now. The question that Virendra Jain is a very well-known and senior activist from Midas Touch Investor Association. उन्होंने बहुत सारे public interest litigations में he's been extremely successful in getting people money back. So he is in court just now in the Supreme Court on the Franklin Templeton issue. And यहाँ पे 6 debt funds have been closed and they're fighting in the Supreme Court. एक सीधी सी बात है, which is that SEBI has ordered a forensic report on Franklin Templeton and refuses to disclose it. So what is it that one can do in order to is there any suggestion that you have that he can get this information out in the public domain? Which information? I could not follow. Which? But it's a forensic report that SEBI asked has SEBI. Franklin Templeton. So when this case was in the Karnataka High Court, SEBI did not produce it. Now it has gone to the Supreme Court. SEBI still does not produce it. SEBI will not act on Franklin Templeton fast enough. Instead, it is in the Supreme Court defending the fact that it is not ready to give the report. And unfortunately, courts in India pay a lot of attention to what the regulators say.
but people have invested on the basis that Franklin Templeton Mutual Fund has followed the rules. There are leaks in the paper about what is there in the report, and it is quite sensational. So even after the leaks, I think people have a right to know what is in the forensic report. But for some reason, we just can't seem to make any headway. Would you have any suggestion about what can be done to get this information in the public domain? Why not? SEBI, you file an RTI application at SEBI as a regulatory public authority, and you should get the information. That's simple. So unfortunately, our experience with filing things with SEBI, I think the only time we've got some success is when Shailesh Gandhi filed a few on our behalf. Otherwise, SEBI just blanket rejects it. The reason why SEBI also is not forcing NSE is because SEBI's attitude is, to reject most of RTI applications filed to it. Then, madam, this is the future of RTI Act. Then only remedy is court. And court, I have just told that CIC verdicts are lying challenged by public authorities for decades. Correct. Mother Dairy ने even सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्लियामेंट्री रिप्लाई के बाद भी अभी अपील वापस मिली. तो इसका क्या इलाज है? जब सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि भाई ये पब्लिक अथॉरिटी होनी चाहिए, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की जितनी भी सब्सिडरीज हैं, उसके बावजूद वो अपनी अपील विड्रॉ नहीं कर रही. अनफॉर्चुनेट. वो तो शैलेश जी ऐसे लोगों को, और आप मनी लाइफ फाउंडेशन जैसे, आप दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है. आप लोगों के ही ऊपर हम लोग तो अब आश्रित हैं. मैं आपको सहयोग कर सकता हूँ. आप मेरे से कहिए, आप क्वेरीज बना के, मतलब आप अपनी भाषा में क्वेरीज बनाइए, नॉट इन टर्म्स ऑफ आरटीआई. आई विल फाइल आरटीआई एप्लीकेशन. फैंटास्टिक. यही कॉपरेट कर सकता हूँ. मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल आरटीआई की लैंग्वेज में बनाइए. कोई भी है, आप में से कोई भी है, अरविंद जी हैं या और कोई आपके सहयोगी हैं मनी लाइफ फाउंडेशन में, वो लेमन लैंग्वेज में जो वो चाहते हैं वो बना के भेज दें. आई विल फाइल आरटीआई एप्लीकेशन विद द प्रॉपर ड्राफ्टिंग की कैसे जवाब लिया जाता है. चाहेंगे तो मैं आपके लिए ड्राफ्ट कर दूंगा, आप अपने नाम से फाइल कर दीजिए. आप चाहेंगे मैं फाइल कर दूं, मैं कर दूंगा. थैंक यू सो मच. कर सकता हूँ. थैंक यू वेरी मच. बाकी मैं तो मनी लाइफ फाउंडेशन और शैलेश सर जैसे लोगों के ऊपर ही अब तो भविष्य देख रहा हूँ आरटीआई का. Thank you for those kind words. So I think I'll just ask another question from the audience. ये question है on public interest. Somebody is asking, is public interest a valid cause for RTI applications, or do you have to specify a personal interest if you have any? I think this is also connected to the points that maybe Vinita ma'am was also mentioning a while ago about cause and all of that. So अगर इसके ऊपर आप थोड़ा, उनका सेक्शन 8(1) ये था, आपका सेक्शन 8(1) है. Okay, yeah. So if you could expand. वो 8(1) का बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन था कि नेशनल इंटरेस्ट की क्या डेफिनेशन है. आपका है पर्सनल इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट. इसमें तो सुप्रीम कोर्ट के इतने जजमेंट आ चुके कि मेरे ख्याल से अब 8(1) ही सब जगह लागू हो जाया करेगा. और जितनी भी एग्जम्पशंस लगती हैं, आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, 60 to 70% आरटीआई एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड, are declined, not rejected, are declined under section 8(1) of RTI Act. और सुप्रीम कोर्ट के इतने वर्डिक्ट आ गए हैं और इतने एलोबरेटिव. मेरे वाला ये वर्डिक्ट है सीपीआई और सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल, जो 13/11/2019 का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का वर्डिक्ट है. उसमें तो पूरा एक पैराग्राफ इतना ज्यादा दे दिया कि ये चीजें पर्सनल एग्जम्पशन है, और उसके एंड में एक सेंटेंस और जोड़ दिया है, लिस्ट इज याद नहीं क्या, लिस्ट इज इंडिकेटिव नॉट एग्जॉस्टिव. जो हमने लिखा है वो इंडिकेटिव है खाली, एग्जॉस्टिव नहीं है. उसके अलावा आप भी उसमें डिवाइस कर सकते हैं. अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के हर एक वर्डिक्ट में एक बात लिखी है, जितने भी 8(1) में है, अनलेस पब्लिक इंटरेस्ट इज प्रूव्ड. अब ये तो वो सवाल आ गया कि अगर आपके पास किसी की करप्ट डीड्स का पूरा डाटा है
अगर आरटीआई एक्ट में वो मिलेगा तो आप पब्लिक इंटरेस्ट प्रूव कर सकते हो, और जो चीज आपके पास ऑथेंटिकली नहीं है तो उसे आप कैसे कहोगे कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है? तो घोड़ा आ गया या तांगा आ गया, वो वाली बात चल रही है इसमें। तो पब्लिक इंटरेस्ट पहले प्रूव करो, ये एक बड़ी समस्या है। शैलेश सर, कैन आई रिक्वेस्ट कोर्ट का जो जजमेंट है वो दैट इज लॉ ऑफ लैंड, में हम कह ही नहीं सकते। Sir, can I request you also to add your comment on this, because you've been working specifically on 81J for a very long time, and it's a personal interest of yours also. So can you expand on this a little? In my opinion, the Supreme Court's judgments are per incurium and not as per law. In my opinion, they are not as per the Constitution nor as per the law. But the only solution I can see is building public opinion about this, and then 2-3 years later, maybe hope that something happens. This is a question that somebody has asked. This question is, can SEBI refuse the forensic audit report of any listed company if the RTI applicant is a shareholder? सेक्शन 4(1)D में पर्सनली अफेक्टेड पर्संस के लिए अलग प्रोविजन है। अगर वो शेयर होल्डर है तो उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है। तो सेक्शन 4(1)D का भी बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, और एक सेक्शन 8(2) और है, उसका इस्तेमाल तो जितना मैंने किया है मेरे ख्याल से किसी ने नहीं किया। सेक्शन 8(2) सेज इफ यू आर एबल टू प्रूव पब्लिक इंटरेस्ट, देन 8(1) की जितने भी 10 सब एग्जम्पशन है वो सब ओवरराइड हो जाते हैं। मैंने इसका बहुत इस्तेमाल किया और बड़े अच्छे CIC वर्डिक्ट्स आए हैं। कैसे हमारे फॉर्मर उस समय के यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ने कैसे अपनी पोस्ट का मिसयूज किया, इसके ऊपर मैडम सुषमा सिंह का जो जजमेंट था, उसके बाद जो मेरे को जानकारी मिली वो सेक्शन 8(2) में मिली थी, क्योंकि एयरलाइंस कंसर्न जो पब्लिक अथॉरिटी थी उसने सेक्शन 8(1)D कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस कि ये पैसेंजर्स, और 8(1)J कि ये हमारा तो प्राइवेट एयरलाइन से कंपटीशन है, हमारी क्लाइंट लिस्ट आउट हो जाएगी, और 8(1)J पैसेंजर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन है। केस क्या था मैं आपको बता दूं कि एक बार क्या हुआ था कि एक बेंगलोर से माले, हमारे एक फॉर्मर सिविल एविएशन में उस समय के सिविल एविएशन मिनिस्टर के फ्रेंड्स या रिलेशंस के ग्रुप को बॉम्बे से माले जाना था लग्जरी ट्रिप पे, और क्योंकि उस रूट पे ट्रैफिक कम होता है तो एक छोटा एयरक्राफ्ट डिप्लॉयड था, तो उसमें बिजनेस क्लास में सीट्स कम पड़ रही थी। तो उन मिनिस्टर साहब ने अपने पोस्ट का मिसयूज करते हुए चंडीगढ़ से एक बड़ा प्लेन खाली बेंगलोर भेजा, और वो फिर बेंगलोर से माले ग्रुप को लेके गया, क्योंकि भाई उनके कॉलीग पहले कह चुके थे कि इकोनॉमिक क्लास इज कैटल क्लास, और इतने बड़े आदमी जो है वो कैटल क्लास में कैसे जाएं, और ऐसे रिटर्न जर्नी पे हुआ। मैंने पैसेंजर की लिस्ट मांगी थी, तो मैंने कहा, मैंने जो मैडम सुषमा सिंह थी उनके सामने कहा, मैडम बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये 8(1)D और 8(1)J में एग्जम्प्टेड, आई एडमिट, पर देयर इज अ सेक्शन 8(2) इन केस पब्लिक इंटरेस्ट ओवरवेज द हार्म प्रोटेक्टेड, इंफॉर्मेशन विल हैव टू बी प्रोवाइडेड। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हुई, उनके बाद के जो सिविल एविएशन मिनिस्टर थे उन्हें माफी मांगनी पड़ी कि मेरे जितने भी जो पूर्ववर्ती मिनिस्टर थे उन्होंने मिसयूज किया। सेक्शन 4(1)D, सेक्शन 8(2) ये बहुत कम लोगों को इनका पता है। Yeah, we'll take some questions from the audience who have raised their hands. Mr. CP Agarwal, can you please unmute yourself? Hello. Yeah, we can hear you, Mr. Agarwal. I would request you to be very precise and keep your questions short. Over to you. Sir. Okay, sir. I have got some issue in regard to the appeal with the CIC, because the time has lapsed since January 2020. So I want to get some action against the first appellate authority, and because my personal RTA application has not been responded properly, and it has been mischievously it has been replied. So can I avail your help and your site Money Life Foundation to get me this properly
to take the action in this matter? देखिए, मैं आपकी मैंने बात समझ ली। पहली बात तो ये कि आरटीआई एक्ट में हमारे यहाँ एक ये थोड़ा सा लकूना रह गया कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के लिए कोई भी एक्शन का इसमें प्रावधान नहीं है। दूसरी बात ये, मैडम विनीता जी, मैं आपको यही बता दूं कि 40,000 जो CIC में मैटर्स पेंडिंग है, इसमें से अगर ये 10 रुपए की 50 रुपए फीस होती ना, तो जो मिस्टर CP अग्रवाल जैसे, अगर इनकी जेन्युइन एप्लीकेशन है, ऐसे जेन्युइन इंफॉर्मेशन सीकर्स होते तो इतना टाइम नहीं लगता। आज 40,000 एप्लीकेशन सिर्फ इसलिए हैं कि 10 रुपए की RTI फीस है। दिल्ली फायर सर्विस में एक पर्सन हर थर्सडे को आके 100 RTI एप्लीकेशंस लगाता था, और वो एक येलो जर्नलिज्म वाला था, और उनका PIO परेशान हो गया। रात को 12 बजे कॉल किया उसने मेरे को कि जी मेरी 100 RTI निपटती नहीं है, वो अगली 100 और आ जाती हैं। फिर मैंने उसको रास्ता बता दिया, उसके बाद वो RTI नहीं लगा पाया, क्योंकि मिसयूजर्स बहुत पैदा हो गए हैं। अगर जेन्युइन इंफॉर्मेशन सीकर्स का नुकसान हो रहा है उससे। खैर, मिस्टर CP अग्रवाल की बात पे आते हैं कि एक तो फर्स्ट, अब 2020 से आपकी पेंडिंग है। एक तो मेरे को सब्जेक्ट मैटर का नहीं पता कि आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है, आपने किस तरीके से प्लीडिंग की है। दूसरी बात ये कि अब तो वहां पे बिल्कुल कंप्यूटराइज्ड है, कोई पिटीशन ऊपर नीचे नहीं हो सकती। अब तो पहले सीनियर सिटीजन्स के लिए उन्होंने कुछ लिबर्टी दी थी, वो भी अब खत्म हो गई है। तो यू विल हैव टू वेट टिल योर टर्न कम्स। Mr. Sachin Sharma, can you please unmute yourself? Yeah, sir. Can you hear me? Yeah, we Yes, can. yes. आज सर ये मैट्रिमोनी डिस्प्यूट में जो है, मतलब इतने ज्यादा लीगल टेररिज्म और लीगल प्रोस्टिट्यूशन और लीगल एक्सटॉर्शन प्रमोट हो रहा है कि 90 मिनट में से एक बंदा सुसाइड कर रहा है सर। और सर ये अगर हम मतलब थाने में देखें और कोर्ट में देखें तो मतलब एक सेकंड क्लास सीनियर सिटीजन की तरह बिहेव किया जाता है। और जब हम RTI के थ्रू इनको प्रॉपर फॉलो अप करते हैं, इवन चीफ जस्टिस लेवल तक RTI डालते हैं, तो प्रॉपर ढंग से ना वो जवाब आ पाता है और ना वो सर ऑन रिकॉर्ड चीजें आ पाती है। तो RTI टूल को हम मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में कैसे सही तरीके से यूज कर सकें, ताकि ये जो सर लीगल टेररिज्म, लीगल एक्सटॉर्शन और लीगल प्रोस्टिट्यूशन जो है, ये सब कुछ बंद हो जाए सर। सचिन जी, देखिए, मैंने पहले ही बताया, दिस इज राइट टू इंफॉर्मेशन एंड नॉट राइट टू एक्शन। तो एक तो कोर्ट्स के मैटर जो होते हैं, जुडिशरी जो है उसके दो पार्ट होते हैं, एक जुडिशियल सिस्टम, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जुडिशरी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए RTI के दायरे में आती है, नॉट जुडिशियल सिस्टम। दूसरी बात यह है कि आपका क्वेश्चन रिलेट करता है राइट टू एक्शन में। दिस इज राइट टू इंफॉर्मेशन एंड नॉट राइट टू दिस इज राइट टू इंफॉर्मेशन एंड नॉट राइट टू एक्शन। तो उसे कैसे इस्तेमाल आप RTI एक्ट में कर सकते हैं, ये तो फिर देखने का विषय है। कि आप यही पूछ सकते हैं कि भाई क्या पूछ सकते हैं, मतलब कोर्ट के बारे में तो आप कुछ पूछ ही नहीं सकते, जुडिशियल सिस्टम। शैलेश सर ज्यादा बता पाएंगे। और यस सर, मैं तो कहता हूँ कोर्ट्स में RTI लगाना ही बंद करें तो शायद हम सुखी होंगे। Mr. Naveen Agarwal, can you please unmute? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे छोटे छोटे दो प्रश्न हैं सर, मैं दोनों एक साथ करना चाहूंगा। नहीं, एक एक करके आज एक एक करके। एक तो सेक्शन 81J में जो प्रोविजो दिया हुआ है, बाद में लिखा हुआ है कि जो सूचना संसद या विधानमंडल, राज्य विधानमंडल को देने से मना नहीं किया जा सकता, वो किसी नागरिक को देने से मना नहीं किया जा सकता। तो ऐसी कौन सी सूचनाएं जो होती है जो संसद को या राज्य विधानमंडल को मना नहीं की जा सकती किसी पब्लिक अथॉरिटी द्वारा? इसकी कोई जानकारी हो तो वो मुझे चाहिए थी। सेक्शन 81J थोड़ी, ये तो एक जनरल है और हमारे यहाँ सिस्टम में बड़ी खामियां हैं। और मैं आपको अब इसका जवाब दे देता हूँ। जब भी कोई मैटर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जाता है, तो एक वहां पे एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर का एक पार्ट है कि सबसे पहले एक नोटिफिकेशन इशू कर दो कि अब इस मैटर से संबंधित कोई भी सूचना RTI एक्ट में नहीं दी जाएगी। मैंने ये जो था
जो 2G स्कैम पे मेरी बहुत RTIs थी, तो मेरे पास और इनपुट्स आए। जब मैटर ये पार्लियामेंट्री कमेटी में चला गया तो मैंने फर्दर RTI लगाई, तो उन्होंने 81C लगा के मना कर दिया कि ये नोटिफिकेशन हमारे पास पार्लियामेंट्री कमेटी का आया है कि अब हम इससे सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई सूचना RTI में नहीं दे सकते। मैटर CIC में गया, CIC में मैंने प्लीड की सेक्शन 8(2). मैंने कहा पब्लिक इंटरेस्ट ओवरवेज द हार्म प्रोटेक्टेड। अब चीफ भी कंफ्यूज, नहीं चाहता था कि दो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज में झगड़ा हो, और मैं मतलब गलत बात सहन करने को भी तैयार नहीं था। फिर मैंने ही उन्हें सजेस्ट किया, सर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज में झगड़ा नहीं चाहता, और मेरे फेवर में फैसला वैसे भी था, क्योंकि हर एक चीफ जो है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज से, तो देखिए प्रैक्टिकली हर एक किसी को घबराहट होगी। मैंने कहा जी आप इसे ठंडे बस्ते में डाल दो पिटीशन को, मैं परस्यू, गलत डिसीजन होगा मेरे को कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट और पार्लियामेंट का झगड़ा होगा, वो भी मैं नहीं चाहता, इसलिए आप इसे ठंडे बस्ते में डाल। तो सिस्टम में फ्लॉ है। अगर ये जो पार्लियामेंट्री कमेटीज में जो मैटर जाए उसमें क्यों ये ऐसा होना चाहिए कि ये इससे संबंधित कोई सूचना RTI एक्ट में नहीं दी जाएगी, बल्कि पार्लियामेंट्री कमेटी को सहूलियत मिलेगी। अगर मेरा जैसा व्यक्ति जो कि मीडिया को बकायदा टच में रखता है, कोई नया इनपुट्स लेता है और वो पब्लिश हो जाता है, तो पार्लियामेंट्री कमेटी को हेल्प मिलेगी कि देखो ये भी धांधलेबाजी थी। तो सिस्टम में फ्लॉ है, इसका कोई इलाज नहीं है। जी धन्यवाद सर। मैंने एक बताना चाहूंगा कि इस बारे में मैंने RTI लगाया था संसद जो मंत्रालय होता है उनको, कि भाई ऐसी कौन सी सूचनाएं जो आपको देने से मना नहीं की जा सकती किसी पब्लिक अथॉरिटी द्वारा। तो उनकी तरफ से मुझे रिप्लाई है कि ये सूचना जो है हमारे वेबसाइट पे पब्लिश की हुई है, आप वहां देख लीजिए। मुझे वो कुछ दिखाई नहीं दी। और एक बात बताऊं, देखिए निरुत्साहित कभी नहीं हुई है जी जी। पार्लियामेंट्री कैंटीन्स की सब्सिडी हटके रही ना जी जी। एक मैटर और मैं बताता हूँ, जब मिस्टर बिमल जुल्का वो जो बाद में चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बने, जब वो रेलवे का चार्ज देखते थे एज इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मैंने उनसे कहा जी कि जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं वो सिंगल जर्नी के लिए मल्टीपल बुकिंग करा के छोड़ देते हैं, और आप क्लास AC का देखिए चार्ट कभी भी, वहां पे हर समय ये आएगा कि कंप्लीटली बुक। उन्हें ट्रेवल करना है एक बार और वो 10 जगह बुकिंग करा के छोड़ देते हैं, क्योंकि पैसा उन्हें तो देना नहीं पड़ता, देना पड़ता है लोकसभा या राज्यसभा सेक्रेटरीट को, चाहे वो बुकिंग अवेल करें या नहीं करें। तो इसके ऊपर मैंने एक RTI लगाई थी, मल्टीपल क्वेरीज, वही सजेशंस के ऊपर एक्शन टेकन रिपोर्ट वगैरह लेके। अल्टीमेटली रिसेंटली अब जाके उस पर सुधार की वो आई है नौबत। अब रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने कोई नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो कि इस तरीके की जो पार्लियामेंटेरियंस की एक गलत एक्टिविटी थी उसे कंट्रोल करेगा। हिम्मत नहीं हारिए, नेशनल पब्लिक इंटरेस्ट की RTIs लगाते रहिए। अगर आप सिंसियरली काम करते रहेंगे तो कभी ना कभी उसका फल मिलेगा, कभी ना कभी कोई अच्छा आदमी अच्छी पोस्ट पे बैठेगा। जैसे प्रेजेंट स्पीकर ने आके कर दी ना पार्लियामेंट्री कैंटीन्स की सब्सिडी खत्म, जो कि पहले ही स्पीकर ने मना कर दी कि नहीं ये तो होनी चाहिए। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। समाज में अच्छे लोग भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, जो पब्लिक इंटरेस्ट समझते हैं ऐसे लोग भी हैं, जो नहीं समझते वो भी है। मैं किसी को बुरा लोग तो कहता नहीं, अच्छे के साथ बुरे नहीं बोलता, क्योंकि भैया कोई मेरे ऊपर ही डिफेमेशन कर दे मैं बचता हूँ। नहीं हारिए, आप RTI एक्ट का इस्तेमाल करिए। मेरी तो अपनी पर्सनल लिमिटेशंस हो गई, इसलिए मैं तो थक गया। आप लोग करिए, बड़ी अच्छी बात है, मेरा सहयोग आपके साथ है। थैंक यू फॉर दैट सर। आई थिंक इसके साथ विल हैव टू क्लोज बिकॉज सबके टाइम का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सो आई थिंक आई वुड नाउ जस्ट रिक्वेस्ट आवर speakers and our moderator if they have any closing comments before we can end the session. Sir, any closing comments from both of you? Mr. Shailesh Gandhi sir. I think this has been a very useful session for RTI and for all the participants, and I have nothing to add. Thank you, Mr. Agarwal. Thank you very much. Thank you, sir.
नमस्ते विनीता जी, नमस्ते सबको।